Hello, everyone. Very good morning to all of you. And first of all, many congratulations. Yes, congratulations and celebrations. Yes, going on. I'm sure that you are definitely enjoying this time, big time. Yes. So I'm really excited. Actually, I'm getting such kind of positive energies. Yes, after such a long journey, you reach to your destination, and this is definitely an exciting feeling. And definitely in today's session, I will be sharing that, you will be sharing that feeling with me. I will be talking about certain things. And this is naturally, I mean, 3 days have been passed. And definitely the celebration should go on. But yes, during this all this celebration, sometimes people then start asking you that what are your next plans, right? So because life is just like that. Uh, I remember that I was told lot of times, काफी बार मुझे ऐसा बोला जाता था कि एक बार फाउंडेशन क्लियर कर लो आप, उसके बाद लाइफ विल बी वेरी इजी। उसके बाद बोला गया है कि एक बार इंटरमीडिएट क्लियर कर लो आप, उसके बाद लाइफ विल बी मोर इजी बिकॉज यू विल बी ऑलमोस्ट इन द गेम। और उसके बाद बोला गया है कि एक बार आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी तब लाइफ विल बी वेरी इजी। एंड फाइनली जब फाइनल्स क्लियर हुए थे, राइट, उसके बाद तो सभी ने बोला था अब नाउ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइफ विल बी सुपर इजी। एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, ऑल राइट। सो Yes, यस, sir. जिनके लिए ऑडिबल नहीं है, यस, एक बार ऑडियो कनेक्ट करिए। इफ यू आर जॉइनिंग थ्रू मोबाइल, ज्वाइन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर। सो ये एक जर्नी है बेसिकली, और यही चलता रहेगा दैट पीपल विल अगेन आस्क यू दैट लाइफ विल बी वेरी इजी once you start your first job, and it goes on like that, right? So definitely it's a fantastic time, but I am sure that this is a major milestone that you have already achieved. ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। अब इसके बाद की जो जर्नी है, डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट गेम, एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। So yes, this is first of all, this is for you, that definitely it's a fantastic one. And now this is a completely different league, right? And in this league, we'll talk about the as I told you that this is definitely a journey, right? When you feel that you have reached to a destination, right? You become chartered accountant, you reach to a certain level, then again you find that there are a lot of people around you who have reached to that level, and you will again find some kind of competition. So this is again the same thing that you will find। अब आपको वापस से एक अगला डेस्टिनेशन दिखेगा, और आज हम लोग उस डेस्टिनेशन के बारे में बात करेंगे। Yes, so actually because I am just getting these messages, so can you just confirm me there is sound or not? Yes, sir, sir. sound आ रहा है। Sound आ रही है। All right, all right, all right, all right. Okay, okay. Okay, so जिनको sound नहीं आ रहा, please check करिए systems. Yes, now all of your interviews would be on the virtual mode, so you should have a very, very strong systems in place. Okay, great. So before I start, I would like to introduce myself. Yes, some of you may be knowing already. My name is Gunjan Shrimal, and I have two kind of introductions. One is the first phase of my life. That phase was as a corporate employee. So just like you, when I cleared my CA finals, I joined through Institute campus. I appeared in Institute campus, and Idea Cellular was my first job. So the companies logos which you are looking at the end, all these companies I have worked in. I started with Idea, worked for Tikona, that was a startup. And then I moved to Malaysia for 2 years. And then I joined one of the subsidiary of Apollo Group as a CFO. Before that, the first thing was my industrial training with Bank of America. That was in their
treasury's mid office. So why I'm talking about this particular journey, because there are a lot of questions that you will be having regarding the job profile. What kind of profile I should opt for and what kind of companies I should go into. So based on my this past 12 years of corporate experience, where I started my journey as a management trainee and then reached to the final destination, that is chief financial officer. I've seen multiple stages in between, and definitely we have tried to incorporate all these learnings in our program as well, so that whenever you start your career, this is definitely a very important decision. First job definitely makes a very important role, plays a very important role. और आपका जो भी डिसीजन रहेगा, राइट, ये डिसीजन आपके पूरे करियर को काफी इम्पैक्ट करेगा. So this is like the first half of what I have spent, and ये मैं अपना इंट्रोडक्शन इसलिए आपको दे रहा हूँ, so that आप जिन भी क्वेश्चन से अभी struggle कर रहे हो, whatever questions those are coming in your mind, right, feel free to ask those questions. I'll try to give the best possible answers for those questions. Second phase of my life, which started somewhere in 2017 when we started our own company, that is CampRep. We dealt with lot of students, right? We dealt with people who have been into who have different kind of experiences, different articleship experience, different kind of attempts, different kind of backgrounds, somehow Hindi medium background. So we have dealt with lot of students, and I mean we are very proud to say that almost 2,000 students have been placed through us so far, right? So definitely it's a great okay. So again, like those who are struggling to get the sound, just click on the bottom left corner, right? Yes. Thanks, Amir. All right. So what I'm saying is that this particular phase is basically dealing with students and understanding their concerns, because everyone has a different number of attempts in CA final, and we'll be talking about that. Does the number of attempts plays a difference, right? Different articleship experience different articleship experience plays a difference. Yes. Expectations are different. Then people have different kind of priorities, right? Some may have priorities of working in their hometown, some have the priorities of working outside. So we have dealt with a lot of different students and tried that whatever mistakes they have made, we will communicate those mistakes to you, so that जब आप अपना decision लेंगे अपने career का, तो वो mistakes आप repeat ना करें, right? So that is the second half. So first half was as a corporate employee, and second as a corporate trainer. And जितनी भी ये learnings है, we have incorporated these learnings in our training program. और इसी को आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, that what is important, what after CA qualification, what are the challenges. And I would suggest you that these 90 minutes, in these 90 minutes, we'll be discussing many things. Yes. So if you will jot down few of the points, right, that will be great. तो आप लोग अपने साथ अगर एक नोटबुक कैरी करेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें रहेंगी जो हम लोग क्विकली आगे बढ़ेंगे उसको डिस्कस करके, बिकॉज 90 minutes इज नॉट सफिशिएंट, यू आल्सो अंडरस्टैंड दैट. तो कुछ चीजें हम बहुत ही क्विकली डिस्कस करेंगे, तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना है. और जहां भी आपको लगता है कि यस आपको डाउट है, यस अपने आप को आप अनम्यूट करिए, एंड देन डेफिनेटली विल टेक दोस क्वेश्चंस. All right, so today's theme is basically be realistic and optimistic, right? Why I'm saying be realistic, because many times people say that now you're a chartered accountant, you will get anything whatever you want, right? So we're talking about the reality as well, because what is the market reality? Yes, we need to understand that as well. Obviously you all people are optimistic, that's why you people are here, but we need to see the other side also. These are the points that we'll be covering today. Package versus profile,
outside job opportunities, job portals, hometown versus the other opportunities, campus versus off-campus, recruitment agencies required or not. So these are some market scenarios. Second, we'll be talking about the various profiles which are available, like auditing, accounting, cash management, treasury, corporates, banking, credit management, investment banking, all these kind of profiles which are broadly available. And third is the selection process, right? So in the end, we'll be doing a quick campus quiz. ठीक है, उस quiz में आपको answers देना है, और उन answers के जो भी winners रहेंगे, right? Whoever will give the answers, they will get the prizes for the same. So that you will get a feeling also that what kind of questions that you will be facing in your campus program, right? So we'll divide the entire session into three parts. One is understanding the opportunities in industry, right? Second is self clarity, and third is campus preparations. काफी क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के माइंड में, और उनके लिए हमने क्या करा है दैट जो भी पास स्टूडेंट्स रहे हैं उनकी कुछ 3 से 4 केस स्टडीज हैं. इन केस स्टडीज के बाद हम लोग मार्केट की रियलिटी, जो इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है उसको समझेंगे. आईसीआई कैंपस जो आता है उसमें किस टाइप की कंपनीज आती है उन सब के बारे में बात करेंगे. बट सबसे पहले ये कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है दैट दीज आर सम ऑफ द रियल लाइफ केस स्टडीज जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और इन केस स्टडीज के बेसिस पे आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो दैट are you really facing similar stuff like that? Do you have similar thoughts in your mind, right? So the first thing is the attempts and specification, right? काफी सारे स्टूडेंट्स का ये एक सवाल होता है, although ये एक फैक्ट है दैट ऐसा बोला जाता था हमें बचपन में कि किसी भी पर्सन से उसकी एज नहीं पूछी जाती है, और उसकी सैलरी नहीं पूछी जाती है, राइट? ये दोनों चीजें पूछना अच्छी बात नहीं है. तो इसी तरह से बोला जाता है कि ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनके अटेम्प्ट्स नहीं पूछना चाहिए. लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो आपको बार बार शायद सामने आ सकता है, और आएगा ही ये सामने, राइट? इनफैक्ट इन द सेशंस आई विल बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, राइट? इस बात को हमको आगे समझना रहेगा. द फर्दर स्लाइड्स आई विल टॉक अबाउट इट. So this is a case of one of my student. He cleared in November 18, right? He got a very good articleship experience in the field of taxation. इन्होंने टैक्सेशन में काफी अच्छी आर्टिकलशिप करी थी. जैसे आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ऐसा फील्ड होगा जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन रहा होगा, या हो सकता है कि आपने सब जनरलाइज्ड आर्टिकलशिप करी हो जिसमें सभी तरह का एक्सपीरियंस हो. He got a very good articleship experience in direct taxation, right? But he cleared in 6 attempts, right? जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं आप देखोगे इंस्टीट्यूट की जो शॉर्ट लिस्टिंग आती है उसमें नंबर ऑफ कंपनीज कम होती जाती है, राइट? इसका मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को समझना है, ठीक है? तो इनके 6 अटेम्प्ट्स थे, और इन्होंने क्योंकि टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन में अपनी आर्टिकलशिप करी थी, तो इन्होंने सोचा था कि मुझे पहला जॉब केवल डायरेक्ट टैक्सेशन में मिलेगा, राइट? सो बेसिकली 2 चीजें हुई यहाँ पर. पहला, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन सीए फाइनल, नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टिंग इनकी थोड़ी कम आई थी, और दूसरा उन्होंने एक एडिशनल फिल्टर लगाया था डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए कि हमें डायरेक्ट टैक्सेशन में ही रोल मिलेगा, बिकॉज आई हैव डन आर्टिकलशिप इन डायरेक्ट टैक्सेशन. सो ये 2 चीजों के कारण ही वाज नॉट गेटिंग कॉल्स, राइट? आपको पता ही है डायरेक्ट टैक्स में कंपैरेटिवली ओपनिंग्स कम होती है. So when we discussed, I told him that prepare very well for audit and Big Four, right? आप Big Four के लिए अप्लाई करो, प्रिपेयर करो. उनका थॉट था कि 6 अटेम्प्ट्स हो गए तो फिर Big Four में कैसे मिलेगा मुझे जॉब. सो यहाँ पे भी एक मिसकंसेप्शन रहता है. ये मिसकंसेप्शन सभी को निकाल देना है. अगर आपके ज्यादा अटेम्प्ट्स भी हैं लेकिन अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस रहते हैं, राइट? ही प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर इंडेज. He prepared very well for audit, and the first job that he has got is in PwC, right? So इस पूरे केस में 2-3 बातें हैं. पहली बात ये कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है उसको कंस्टेंट मत बनाइए कि हमें इसी में रोल मिलेगा, राइट? इसके बियॉन्ड नहीं मिल सकता है.
किसी प्रोफाइल में आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा है आर्टिकलशिप में, डोंट वरी, राइट? देयर आर पीपल, द इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज यू एज अ फ्रेशर। इंडस्ट्री आपको फ्रेशर की तरह रिकॉग्नाइज कर रही है, तो आपको ये थॉट नहीं रखना है। और थर्ड पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कंपनीज में कई बार मैटर करते हैं, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि कैंपस में या ऑफ कैंपस में। हो सकता है ऑफ कैंपस वो अटेम्प्ट्स मैटर ना करते हो, ठीक है? सो जो कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं या कुछ हम लोग थॉट्स लेकर चलते हैं कि लाइक हमारे केस में ऐसा है तो ऐसा ही होगा, वो आपको थॉट्स लेकर नहीं चलना है, राइट? ऐसे हम लोग और केसेस डिस्कस करेंगे, उससे आपको और क्लैरिटी बनती जाएगी। फिर उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हो, राइट, आप डेफिनेटली वो डिस्कस करिएगा। This case is about someone who got rejected in the first round, that is HR round, right? काफी लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि HR राउंड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, टेक्निकल में ही वो सारी अपनी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि HR राउंड इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे पहला सवाल ये पूछा गया था कि व्हाई यू टुक अ ट्रांसफर इन योर आर्टिकलशिप एंड दिस पर्सन वाज नॉट रेडी फॉर इट, राइट? सो ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप समझो कि मैच की पहली बॉल खेली गई और पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गया, राइट? आगे खेलने का मौका ही नहीं मिला। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, और खास तौर पे एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए हमको पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है, राइट? सो जैसे ये केस ट्रांसफर केस का था, तो आप लोगों में से भी जिनके भी ट्रांसफर केसेस हैं, यस, ध्यान रखिएगा, उसको थोड़ा सा लॉजिकली आंसर करना है। प्लस HR राउंड को लाइटली नहीं लेना है, राइट? HR राउंड विल आल्सो sometimes become very critical. This is a case of exactly reverse case है। इनके 2 अटेम्प्ट्स थे, नवंबर 19 में इन्होंने क्लियर किया था, और इनकी आर्टिकलशिप पूरी ऑडिट में हुई थी, राइट? एंटायरली इनटू ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स एंड टैक्स ऑडिट, समथिंग लाइक दैट। और दे गॉट शॉर्टलिस्टिंग ओनली इन बैंक्स। इनको 4 शॉर्टलिस्टिंग आई थी। कैंपस के बारे में हम बात करेंगे, कैंपस में कैसे शॉर्टलिस्टिंग आती है। सो ऑल 4 शॉर्टलिस्टिंग वर इन बैंक्स, राइट? सो किस्मत की बात है कि आपकी आर्टिकलशिप पूरी ऑडिट में हुई है, और आपको जो इंस्टीट्यूट की शॉर्टलिस्टिंग आई है सारी की सारी बैंक्स के अंदर आई है, राइट? सो दिस गर्ल वाज वेरी मच आई मीन इन सरप्राइज कि अभी क्या करना है, क्योंकि बैंकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एंड बिलीव मी, इसमें इन्होंने जो प्रिपरेशन करी थी उसमें आउट ऑफ 4, ऑल्दो आप एक बार एक कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हो, दूसरे में बैठने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने जितनी बैंक्स में अपीयर किया था उन सब में से जो बेस्ट ऑफर था उस टाइम पर, वो इन्होंने लिया था। सो कहने की बात ये है कि आपको किसी भी चीज में बॉदर नहीं करना है। अगर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में, तब भी यू हैव 100% चांसेस। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर वेल। शॉर्टलिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीटली डिफरेंट रहता है, ठीक है? उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आर्टिकलशिप को लेकर बहुत ज्यादा कंपनीज इसलिए कंसर्न नहीं करते हैं क्योंकि आप फ्रेशर हो। यही चीजें अगर हम 4 साल बाद बात करेंगे तो नेचुरली फर्क पड़ता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाता है, और आपके जो इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, और इंटरव्यू कॉल्स आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आते हैं। All right, so now this is case number 4 where this person wants to go to Gulf countries, right? सुना होगा आप लोगों ने कि गल्फ में पैसा ही पैसा है, राइट? सो जब सीए कर रहे होते हैं तो ये दिमाग में होता है कि थॉट की कैसे भी करके अब तो बस पैसा कमाना है, राइट? तो इन्होंने पहले से ही मन बना लिया था कि अब तो बस पैसा बनाएंगे। तो इन्होंने शुरू से मुझे जब पहली बार मिले, इन्होंने बोला मुझे गल्फ जाना है, राइट? इनके 4 अटेम्प्ट थे, और इनको ये लग गया था कि इस बार कंपटीशन थोड़ी सी टफ है, राइट? हर बार आपको स्टार्टिंग में एक सेंस हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कंपटीशन किस टाइप की है, हमारा कुछ चांस बन रहा है नहीं बन रहा है। इनको जो पहला मौका मिला, राइट, उस पहले मौके में ही इन्होंने ग्रैंड थॉर्टन को ऑप्ट कर लिया, राइट? यू नो ग्रैंड थॉर्टन, इट इज बिग 6 फर्म। विद इन 6 मंथ्स इन्होंने ग्रैंड थॉर्टन से मूवमेंट ले लिया और ये केपीएमजी में चले गए। और 1 साल बाद he is now working with I think he is in Qatar right now, right? तो जो इनका ड्रीम है वो डेफिनेटली पूरा हो गया 1 साल बाद, लेकिन 1 साल बाद हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में भी कुछ थॉट्स होंगे, मुझे ये पर्टिकुलर फील्ड में जाना है या फिर इसमें जाना है,
देखो जरूरी नहीं है कि आपको आज ही वो मिल जाए, समटाइम्स यू नीड टू वेट ऑल्सो, ठीक है। बिकॉज इंडस्ट्री के बहुत सारे जैसे आप चूजी हो वैसे इंडस्ट्री भी चूजी है, इंडस्ट्री भी चूज करती है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, राइट। तो समटाइम्स वी नीड टू वेट ऑल्सो। तो आप ये मत सोचो कि लाइक हमें जो चाहिए वो हमें आज ही मिल जाना चाहिए। हमें जो चाहिए वो बेसिकली वी विल गेट इट मे बी आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year। तो वी नीड टू डिजाइन और वी नीड टू प्लान our journey accordingly, right? This is another problem, wrong center selection, right? Center selection is again, कई सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ जो सेंटर सिलेक्शन जब करना होता है, यू विल टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट कैंपस, उसमें आपको एक सेंटर सिलेक्ट करना होता है। तो सेंटर सिलेक्शन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि देखते हैं कहाँ पर सबसे ज्यादा कंपनीज आई हैं, जैसे कि मुंबई कैंपस, बैंगलोर कैंपस, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। तो बिना और कोई एनालिसिस करे, या फिर ये देखते हैं कि कौन सी कंपनीज है जिनमें उनको जाना है, ऐसी कंपनीज में वो डायरेक्टली अप्लाई, डायरेक्टली ऐसे सेंटर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक गलत स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आपके लिए सेंटर सिलेक्शन इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। फॉर्म फिलिंग इज वेरी सिंपल, राइट? जैसे आप एग्जाम के फॉर्म्स भरते हो वैसा ही है, उसमें केवल और केवल एक ट्रिकी पॉइंट है, वो है सेंटर को सिलेक्ट करने का। तो सेंटर सिलेक्शन के लिए इसलिए हम लोग क्लास में एक अलग ही सेशन करते हैं, और ये गलती होती है, ठीक है। तो आप लोग इस डिसीजन को जब भी लो, इसको ध्यान रखना, इस बात को, इस डिसीजन को ऐसे मत लेना कि लाइक मेरे फ्रेंड ने मुंबई लिया है मैं भी मुंबई ले लेता हूँ। इट हैज टू बी अ वेरी थॉटफुल डिसीजन, राइट? अभी हम उसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट विल बी, इट्स अ क्रिटिकल डिसीजन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस, कुछ थॉट्स ये होते हैं कि लाइक केवल इंस्टीट्यूट कैंपस ही है क्या? सो मैं आपको ये लाइव बता सकता हूँ कि अभी तक हम लोगों की क्लास में जो हाईएस्ट पैकेज गया है दैट पैकेज इज 45 lakhs, और वो इंटरनेशनल पोस्टिंग का पैकेज था, राइट? एंड दे हैव गॉट इट थ्रू naukri.com, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि हम केवल एक ही सोर्स के थ्रू अप्लाई करेंगे। ऑल्दो पीपल विल टेल यू मल्टीपल थिंग्स, वो आपको ये बोलेंगे कि हमारे थ्रू अप्लाई करो आप, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यू नीड टू सेंड योर प्रोफाइल्स टू एवरीवन, राइट? आप अपना रेज्यूमे बनाएं और अपने रेज्यूमे को हर जगह भेजिए। यू नेवर नो कहाँ से कौन सी अपॉर्चुनिटी क्लिक कर जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि naukri.com पे आप देखोगे जब आप अपलोड करोगे बहुत तरह तरह के कॉल्स आएंगे आपको। मुझे भी याद है कि मैंने एक बार naukri.com पे अपलोड किया था अपना रेज्यूमे, मुझे अकाउंटेंट के कॉल आने लग गए थे, राइट? फिर मुझे उनको बताना पड़ता था आई एम नॉट अकाउंटेंट, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? तो आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन दिस इज ऑल्सो फैक्ट कि जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं उनके ऊपर हजारों कंसल्टेंट्स एनरोल्ड है, और अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप अपलोड करने के बाद आपकी पॉसिबिलिटीज सर्टेनली काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कुछ स्टोरीज हैं, और अगर आप इन स्टोरीज से कनेक्ट कर पाए हो तो अच्छी बात है। मतलब मेरा यही कहना है आपको कि इन स्टोरीज को के थ्रू आप अपने थॉट्स और अपने क्वेश्चंस को आप क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो अब आगे का जो सेशन है, राइट, उस आगे के सेशन को मैं बता देता हूँ किन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट? सो फर्स्ट इज बेसिकली अबाउट द इंडस्ट्री, राइट? इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट किस तरह के कंपनीज किस तरह के रोल्स लेकर आते हैं, what are they looking for, selection process क्या है, some little bit about, we'll talk about ourselves, our institute, and the common mistakes, ठीक है। So just wherever you find questions, please feel free to ask that, right? सबसे पहले इंस्टीट्यूट कैंपस की बात, थोड़ा सा हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, आपको एक ब्रॉड क्लैरिटी आ गई है, ठीक है। अब हम इंस्टीट्यूट के कैंपस की बात कर लेते हैं। देखो इंस्टीट्यूट का जो कैंपस है, ठीक है, उसमें लास्ट कैंपस हुआ था, ठीक है। उस लास्ट कैंपस में क्या रहा था, 10,000 स्टूडेंट्स गॉट रजिस्टर्ड। हर अटेम्प्ट में करीब करीब 12 to 15,000 और 14,000 स्टूडेंट्स बिकम सीए, ठीक है। और अगर 10,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं, दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि जॉब के लिए इंक्लिनेशन काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आपका बाद में हो सकता है कि लाइक अभी हमें जॉब करना है, बाद में प्रैक्टिस करनी है,
तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे। बाकी ज्यादा करके लोग क्लास में आई थिंक वही होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म प्लान भी जॉब का ही रहता है। सो 10,000 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स रजिस्टर हुए थे और करीब करीब 5,000 अराउंड स्टूडेंट्स हैव गॉट 58,000 गॉट ऑफर्स, लेकिन एक्सेप्ट केवल 4,200 ने करा था, राइट। यानी कि जो बचे हुए 1,600 है, दे मे हैव गॉट सम बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ कैंपस। So 10,000 में से at least 42,000, 4,200, which is definitely a 40% number. ठीक है नंबर, not bad. यही वेरी करता है, राइट, 25-30%, समटाइम्स 40%, किसी के अराउंड वेरी करते हैं बस। लास्ट 2 अटेम्प्ट से अगर मैं ट्रेंड की बात करता हूँ तो मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़े से टफ रहे हैं कैंपस। लास्ट टू लास्ट कैंपस वाज वेरी वेरी टफ। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि उसके 2 महीने पहले ही एक कैंपस हुआ था, तो ऑलरेडी ओपनिंग्स काफी कम हो चुकी थी। दूसरा रीजन ये रहा था कि मतलब विच इज अ गुड न्यूज ऑल्सो एंड बैड न्यूज ऑल्सो, वो न्यूज मैं आपको आगे देता हूँ। लेकिन इस पर्टिकुलर स्लाइड का जो क्रक्स है वो ये है कि करीब 40% स्टूडेंट्स के आसपास कैंपस के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि 5 में से 2 लोग, राइट। और हाईएस्ट पैकेज वाज 28 lakhs and average is around 12.45, right, which is very very good number. So जो अच्छी न्यूज है वो यही है कि आप एवरेज जो देख रहे हो 12.45, इट इज फिनोमिनल, राइट। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ फिनोमिनल क्योंकि मैं 2017 से क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, एंड 2017-18 में इट वाज समवेयर अराउंड 6, now 6 to 12, right, in just a period of 4-5 years, right, it is phenomenal. और पिछले 2-3 सालों में तो ये 9 था, तो मतलब आप समझो कि अभी अभी रिसेंटली द पैकेजेस ऑफ शॉट अप कंप्लीटली, तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। लेकिन इसकी जो फ्लिप साइड है, इसकी जो दूसरी साइड है वो ये साइड है कि अगर पैकेजेस इतनी तेजी से बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनीज जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हर कंपनी के पास उतना बजट नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो 40% का जो नंबर आ रहा है, राइट, सो ये 40% का नंबर इसीलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पैकेजेस तेजी से जंप हुए, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि उनकी जॉब नहीं लगी होगी, ऑब्वियसली उन्होंने ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑप्ट करी होगी, ठीक है। ये पास्ट ट्रेंड है, राइट। 2016 से वी आर ट्रैकिंग इट, जब करीब 4,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर होते थे कैंपस के लिए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर आप देख रहे हो अभी 4,000 इज बिकमिंग 9,000, 9,000 इज बिकमिंग 10,000, लाइक दैट, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ दिस वन डेफिनेटली इट इज क्वाइट अ प्रॉमिसिंग नंबर। ये एक नॉर्म होते हैं बेसिकली डेज अलॉटमेंट के। जो भी पहले दिन जो कंपनीज आती हैं, राइट, वो सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर करती है, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम जो सबसे ज्यादा पैकेजेस ऑफर हुए थे वो हुए थे 20+, राइट, ऑन दी डे प्रीमियर, उसको डे प्रीमियर बोलते हैं। और कंपनीज को मिनिमम 20 lakhs पे करना होता है, और अगर वो 15 से ज्यादा कैंडिडेट्स ले जाती हैं तो 17 lakhs, राइट। तो फर्स्ट डे इज डेफिनेटली द प्रीमियर डे, मुंबई, दिल्ली, इसमें आप देखोगे खास तौर पे सबसे ज्यादा पैकेजेस जनरली डे प्रीमियर पर जाते हैं। उसके बाद फिर डे 1, डे 2, डे 3 एंड इट गोज ऑन। जैसे जैसे डेज निकलते चले जाते हैं उसके बाद पैकेजेस कंपैरेटिवली कम होते चले जाते हैं, राइट। तो ये अभी ये पर्टिकुलर अपडेट आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी नहीं आई है, क्योंकि ये लास्ट अपडेट की बात है। इस बार अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से केवल एक ही नोटिफिकेशन आया है, एंड दैट इज डेज, राइट, किस दिन क्या फॉर्म फिलिंग की डेट्स क्या है। लेकिन जिसमें कंपनीज के नॉर्म्स होते हैं कितना पैकेज वो अलॉट करेंगे, वो अभी पीडीएफ आना बाकी है। लेकिन आई एम श्योर आप लोग जो ग्रुप में एडेड है, मैं लास्ट टाइम का भेज दूंगा आपको, और वो काफी सिमिलर मिलेगा आपको जो अभी तक हम लोगों ने पूरा पुराना ट्रेंड देखा है। तो टुडे आई विल बी सेंडिंग यू सम स्टफ ऑन दी ग्रुप्स। पहला तो बेसिकली ये रहेगा कि आप पास्ट में जो कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था अलग अलग सेंटर्स पर, ठीक है, वो एक आप देख लेना। दूसरा आई विल सेंड यू दिस वन एज वेल, जिसमें बेसिकली इनके ट्रेंड्स नॉर्म्स होते हैं कि पहले दिन हम कितना ऑफर करेंगे, दूसरे दिन कंपनीज कितना ऑफर करती है, थर्ड डे कंपनीज कितना ऑफर करती हैं, लाइक दैट।
So these are basically, और अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हो, राइट, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी क्लियर, मैं आपको दूसरे स्लाइड पर ये दिखाता हूँ। इसमें एक और बात थी दैट नो कंपनी विल ऑफर लेस देन 9 lakhs, ठीक है। तो 12.45 वाज एवरेज, लेकिन कोई भी कंपनी 9 लाख से कम ऑफर नहीं कर सकती है, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट स्टफ, राइट। मतलब हम लोगों के टाइम पर 9 वाज अ ड्रीम दिस थिंग, ऑल्दो हम लोगों का टाइम तो बहुत पहले का था। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मैंने कब क्लियर किया था, मेरी एज सोचना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत हम लोगों के लिए ड्रीम होता था दैट इफ विल गेट समथिंग, राइट। लेकिन मैं बता सकता हूँ, लाइक आई स्टार्टेड इन आइडिया एट 6 lakhs, राइट। मेरा 6 lakhs का पैकेज था जब मैंने स्टार्ट किया था, एंड दैट टाइम यस इट वाज considered to be a good package. Now, 9 lakhs is the minimum, right? Which is a good thing in the institute campus. So large centers और small centers, इन सभी में 9 is the minimum. जो न्यू सेंटर्स आए हैं, कुछ नए सेंटर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं लास्ट टाइम से, भोपाल, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची एंड वडोदरा, राइट। इसमें 7.2 lakhs, ठीक है। इसमें मिनिमम 7.2 lakhs है, ठीक है। तो आप लोगों को एक लार्ज सेंटर सिलेक्ट करना होता है, एक स्मॉल सेंटर सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो मेन जो क्रिटिकल डिसीजन होता है वो लार्ज और स्मॉल सेंटर के लिए रहता है, और उसमें भी लार्ज सेंटर का सिलेक्शन जो है दैट इज मोर क्रिटिकल, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट दैट नाउ। इफ विल टॉक अबाउट द हाईएस्ट सीटीसी, राइट, दैट इज ऑफर्ड। सो अगर आप देखोगे कुछ कंपनीज लाइक डॉश बैंक, पीएफसी, वेदांता, ये वो कंपनीज हैं जो लिटरली काफी हाई पैकेजेस ऑफर करती हैं। सभी के बार्स आप देखो 20+ है, ठीक है। So these are top 10 organization from 2017 to 2022, ठीक है। अब रियलिटी इसकी ये है कि जैसे डॉइश बैंक, राइट, इसने अभी तक सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर किया, समवेयर टचिंग 30, राइट। सो दे हैव ओनली 2 ओपनिंग्स। अब यहाँ पर हम ओपनिंग्स की अगर बात करें तो बहुत ही कम है, 2 ओपनिंग्स। वेदांता कम विथ लिमिटेड ओपनिंग्स, राइट। आईटीसी लिमिटेड ओपनिंग। तो ये वो कंपनीज हैं जो पहले दिन आती है, लेकिन किसी की ओपनिंग मिलेगी आपको 4 वैकेंसीज, किसी में 5 वैकेंसीज, 6 वैकेंसीज, 8 वैकेंसीज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। पैकेजेस का ट्रेंड आप ऑलरेडी समझ चुके हो। 2019 तक जैसा मैंने आपको बताया कि एवरेज 9 के आसपास चल रहा था, ठीक है। एंड सडनली दिस इज नाउ शॉर्ट अप, ठीक है। अभी ये 12.45 13 लाख के अराउंड। यस गीतांजलि बोलिए। सर, जो आपने अभी टॉप 10 कंपनीज बताए, हाँ, ये पर्टिकुलरली फर्स्ट अटेम्प्टर्स को ही लेके जाते हैं या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स जिनके हैं उनको भी पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं और ये टॉप 10 कंपनीज में वो रिक्रूट हो रहे हैं? यस दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो जो पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं, राइट, मोस्टली आप देखोगे कि ये डे प्रीमियर पे आती कंपनीज, और डे प्रीमियर की कंपनीज जनरली रैंक होल्डर्स और फर्स्ट अटेम्प्ट होल्डर्स उनको कंसिडर करती है। समटाइम्स दे कंसिडर 2 अटेम्प्ट्स एज वेल, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा करके हम बात करते हैं तो इसमें अटेम्प्ट्स क्राइटेरिया जनरली रहता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल है जो आपने पूछ लिया है, क्योंकि आगे की स्लाइड में मैं आपको इस रियलिटी को हमको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना है दैट कंपनीज किस टाइप से, किस तरह से, क्या उनका मेजर क्राइटेरिया होता है शॉर्टलिस्टिंग का। ओके ऑल सर। राइट, ओके, गुड। सो अब हम आ जाते हैं कि अभी जो आप लोग कैंपस की प्रोसेस है, राइट, वो कैंपस की प्रोसेस किस टाइप से आगे चलेंगी। सो पहला तो जो सबसे पहली बात है वो है 14 जुलाई। 14 जुलाई से आपके कैंपस के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिलअप होना, ठीक है। आपको 14 से 27 जुलाई काफी लंबा टाइम मिला है, आराम से 2 हफ्ते मिले हैं आपको, ठीक है। आपको इसको फिल करना है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि आज से ही जिसके आपसे सिमिलर नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, ठीक है, उन लोगों से बात करना स्टार्ट कर दूं कि उन्होंने कौन सा सेंटर लिया था, ठीक है। ऑल्दो क्लास में मैं तो इस चीज के ऊपर कंप्लीट गाइडेंस आपको दूंगा, और हम लोग जनरली 1-to-1 गाइडेंस ही रखते हैं, बिकॉज हम लोग की जो बैच होती है दैट इज 60, राइट, वी कॉल इट सुपर 60। तो हम लोगों की जो बैच साइज रहती है वो लिमिटेड रहती है, और हम लोग 1-to-1 ही डिस्कशन करते हैं इन चीजों के ऊपर। फॉर्म फिलिंग के जो डाउट्स हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, उसके लिए आई विल सेंड यू वीडियोस से रिलेटेड आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन सेंटर सिलेक्शन इज समथिंग व्हिच इज 1-to-1 कन्वर्सेशन।
So 14 to 27 जुलाई इज लाइक दैट. आफ्टर दैट कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं. ठीक है. तो प्रोसेस ऐसे चलती है कि पहले तो आपने फॉर्म फिल कर दिया, वो फॉर्म सबमिट हो गया. उसके बाद कंपनीज उन फॉर्म्स को देखती हैं, जितने भी फॉर्म्स आते हैं उसमें से वो आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं, राइट. वो बताती हैं कि हमने इतने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है. तो यहाँ पर हो सकता है किसी एक पर्सन के पास 10 कंपनीज की शॉर्टलिस्ट आ जाए, किसी के पास 15 कंपनीज की आ जाए, किसी के पास 3 ही कंपनीज की शॉर्टलिस्ट आए, किसी के पास 4 कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग आए. तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी कंपनीज ने आपको सिलेक्ट करा है, राइट. तो ये आपको पता चलेगा 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में. ठीक है. और इसके बाद 8 से 11 अगस्त, राइट, जब कंपनीज आपको डिसाइड कर लेंगी कि सपोज 10 कंपनीज ने आपको शॉर्टलिस्ट करा. नाउ यू नीड टू सिलेक्ट ओनली 4 आउट ऑफ दोस कंपनीज. मतलब आप उन 10 में से केवल 4 कंपनीज में ही अपीयर हो सकते हो. सो वो प्रोसेस चलेगा 8th to 11th अगस्त, राइट. वंस द कंपनीज विल शॉर्टलिस्ट यू, देन यू नीड टू सिलेक्ट मैक्सिमम 4. अब अगर आपका सवाल ये है कि हमें अगर 4 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया तो बस फिर आपके पास चॉइस नहीं है, उन्हीं 4 कंपनीज को आपको यस करना है. ठीक है. तो आपको 8 to 11th अगस्त तक ये फाइनलाइज करना है कि हमें कौन सी कंपनी सिलेक्ट करेंगे. अगेन दिस रिक्वायर्स अ क्रिटिकल डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों को 4 से ज्यादा कंपनीज आती है उनके दिमाग में सवाल होता है कि कौन सी कंपनी सिलेक्ट करें. अगेन यहाँ पे 1-to-1 conversation is very much required, and we'll definitely do that based on multiple criteria. Or once you will select the companies, then your interviews will begin from 18th of August, right. आपके 18 अगस्त से मुंबई सेंटर के इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे. उसके पहले रिटर्न टेस्ट होगा आपका, आई थिंक 17th को. जो कंपनीज रिटर्न टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती हैं वो पहले ही करा लेंगी, और 18 से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये बेसिकली मुंबई कैंपस है. उसके बाद धीरे धीरे करके मुंबई, फिर दिल्ली, बैंगलोर, अलग अलग कैंपस. ये कम से कम 15 to 20 डेज ये चलेगा, लार्ज कैंपस. और वंस लार्ज कैंपस विल गेट ओवर, जो लोग लार्ज में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे वो फिर स्मॉल सेंटर में सिलेक्ट, उनकी प्रोसेस स्टार्ट. सो ये पूरा जो है बेसिकली दिस विल बी द एंटायर प्रोसेस ऑफ कैंपस. किसी का इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होगा तो यस डेफिनेटली दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ. सर क्या आप एक बार जो इंटरव्यू की प्रोसेस है उसके बाद का वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ. इंटरव्यू के बाद की प्रोसेस मतलब? मतलब जैसे पहले बिग कैंपस में सिलेक्ट हुआ, फिर स्मॉल कैंपस में, मतलब ये प्रोसेस. अच्छा, बेसिकली सबसे पहले लार्ज सेंटर्स में आप लोगों का सिलेक्शन होगा. लार्ज सेंटर की प्रोसेस स्टार्ट होगी 18th of अगस्त से. मुंबई कैंपस से वो स्टार्ट होता है. फिर 18th के बाद मतलब 18th से वो चलता है, करीब करीब 10 दिन चलता है मुंबई कैंपस. जैसे हमने बात करी ना, डे प्रीमियर 18th विल बी डे प्रीमियर. फिर 19th अगस्त, 20th अगस्त, ऐसे रोज आप देखोगे उसमें कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज होते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस करीब 20-25 डेज तक चलता है लार्ज सेंटर्स का. और इन लार्ज सेंटर्स में अगर कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो फिर उनको मौका मिलता है स्मॉल सेंटर्स में पार्टिसिपेट करने का. फिर स्मॉल सेंटर स्टार्ट होगा आपका मे बी समवेयर अराउंड इन सितंबर. उसकी भी डेट्स ऑलरेडी आ चुकी है कि वो कब स्टार्ट होगी. सो ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ स्मॉल सेंटर विल बिगिन. तो लेकिन आप लोगों का जो टारगेट है, राइट, योर टारगेट हैज टू बी लार्ज सेंटर्स, राइट. आपको लार्ज सेंटर के पहले और उस लार्ज सेंटर में या फिर उसके पहले, राइट, मेरा पर्सनल सजेशन है कि एक जॉब ऑफर कम से कम बिफोर योर कैंपस स्टार्ट यू शुड हैव इन योर हैंड. कैंपस अपनी जगह ठीक है, जरूरी है, लेकिन बिफोर दैट आल्सो यू शुड हैव वन इन योर हैंड. ठीक है. फिर कैंपस में एकदम कॉन्फिडेंटली जाओगे आप. समझ गए आप? और मतलब हाँ लार्ज बोलिए. कैंपस और स्मॉल कैंपस बेसिकली है क्या? मतलब इस बेस्ड ऑन द सिटीज होता है या बेस्ड ऑन कंपनीज होता है? मतलब सपोज मुझे इंदौर में जॉब चाहिए तो वो लार्ज कैंपस कहलाएगी, स्मॉल कैंपस, मतलब बेस्ड ऑन व्हाट? Okay, that one, right. So this is the list of large centers. ये डिपेंड करता है सिटीज के ऊपर. जैसे कि अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड पुणे, राइट. ये कौन से हैं? ये लार्ज सेंटर्स. तो सिटी के बेसिस पर डिसाइड होता है. सर कैसे, क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए साइंटिस्ट को चूज करने के लिए? मतलब हम लोग किस में अपियर हो, मतलब कौन सा बेस्ट है, कैसे डिसाइड करें हम लोग?
देखो वो डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बोला कि वो थोड़ा सा एक इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपके अटेम्प्ट्स, आपके आर्टिकल्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपका करियर एस्पिरेशन, आपका इंटरेस्ट, और आपका लोकेशन, कौन सी प्रेफर्ड लोकेशन, ऐसे 5 से 6 क्राइटेरिया के बेसिस पे जनरली वी डू सजेस्ट, क्योंकि इसका एक जनरलाइज्ड आंसर नहीं है। लेकिन अटेम्प्ट्स इज समथिंग व्हिच डेफिनेटली प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अटेम्प्ट्स एंड मार्क्स, राइट। ये दो अभी तक कंपनी जनरली बताती नहीं है कि हम लोग क्या क्राइटेरिया रखते हैं, लेकिन अगर आप पास ट्रेंड देखोगे, और जैसे हम लोगों ने पिछले 10 अटेम्प्ट्स को स्टडी किया है, और उसमें ये चीज निकल के आती है कि मार्क्स और अटेम्प्ट्स ये एक डेफिनेटली क्राइटेरिया बन जाता है। तो हमको थोड़ा सा उसके बेसिस पे डिसीजन लेना रहता है। ठीक है, तो लार्ज सेंटर्स क्लियर है आप लोगों को कौन कौन से लार्ज सेंटर्स हैं? ये जो सर एक नंबर बार अटेम्प्ट का डिस्क्लोज कर सकते हैं क्या आप, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो था नवंबर 22 में मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे, एंड मेरा फर्स्ट सेकंड ग्रुप क्लियर था, और जो रिमेनिंग ग्रुप था वो मैंने अभी मई 23 में क्लियर करा है। तो उसको एज अ सेकंड अटेम्प्ट मानेंगे या फिर फर्स्ट? सेकंड मानेंगे। तो सेकंड। अटेम्प्ट की जो डेफिनेशन है इंस्टीट्यूट के हिसाब से, वो डेफिनेशन है एलिजिबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। जब से आप एलिजिबल हुए हो अटेम्प्ट देने के लिए, राइट, तब से ये काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो सपोज आपने फर्स्ट, कई कई बार मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम हुए थे लेकिन हमारी उस टाइम पे तबीयत अच्छी नहीं थी, राइट, यू आर नॉट इन गुड कंडीशन, तो उसको काउंट करेंगे क्या? तो इंस्टीट्यूट के डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेटली यस, इवन इफ समबडी हैज नॉट फिल्ड अप द फॉर्म, राइट, फॉर्म भी अगर फिल नहीं किया उसको भी वो लोग काउंट करते हैं। लेकिन वो इंस्टीट्यूट के फॉर्म में कैसे लिखना है, कैसे फिल करना है, वो हम लोग उसी मोमेंट पे एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो आइडियली ऐसे होनी चाहिए, लेकिन रियलिस्टिकली व्हाट पीपल डू इज समथिंग एल्स, राइट। तो वो जब फॉर्म ओपन करेंगे तब हम लोग उसके बारे में ज्यादा बेटर तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ये याद रखना है कि आपसे सिमिलर अटेम्प्ट्स जिनके हैं, राइट, उनसे जरूर बात करना। आज ही मतलब अपनी कॉपी में अगर आप कुछ की पॉइंट्स लिख रहे हो, तो कुछ एक्शनेबल्स लिख रहे हो, तो ये जरूर लिख लेना आप कि हमारे अगर सिमिलर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लोगों से कुछ कांटेक्ट है, तो वी विल टॉक टू देम that which center they have selected and what was their experience. Yeah. Yes, Gitanjali. सर ये थी आपके पास मल्टीपल डिग्रीज है, तो आप उनका वैल्यू एडिशन कैसे शो कर सकते हैं, और क्या इसका कुछ बेनिफिट मिलता है कैंपस में डिस्पाइट ऑफ हैविंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन सीए? Multiple, sorry, what? Like I am having MBA in addition and also one other degree. तो इसका हम क्या कैंपस में कुछ बेनिफिट ले सकते हैं? Definitely, yes. काफी बेनिफिट ले सकते हो आप। आप इंटरव्यूज में आपको डेफिनेटली एक एज मिलता है अगर आपका कोई एडिशनल डिग्री है, या फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है, राइट। ये दोनों चीजें नेचुरली कहीं ना कहीं आपको एड ऑन करती है, बेनिफिट देती है, ओके। राइट। सो ये जो नंबर्स देख रहे हैं आप लोग, राइट, ये नंबर्स क्या है बेसिकली? ये वो नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिन्होंने इन सेंटर्स में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो देख आप मुंबई कैंपस देख रहे हो, सबसे ज्यादा 61 कंपनीज में। अभी लेटेस्ट 2 अटेम्प्ट्स के नंबर्स भी इसमें अपडेट कर आई विल सर्कुलेट इन द ग्रुप्स, बट लगभग लगभग जो ट्रेंड है वो सिमिलर है। स्मॉल सेंटर्स की अगर बात करते हैं तो भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, दुर्गापुर, एर्नाकुलम, इंदौर, कानपुर, नोएडा, ठाणे, राइट, ये वो कंपनीज है। एक बात लेकिन आप लोगों को अभी से याद रखनी है, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने, जैसे इन्होंने कहा कि इंदौर इज द प्रायोरिटी, अगर इंदौर में आपने कैंपस दिया है तो आपकी पोस्टिंग भी इंदौर में होगी, राइट। इसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से 1/10 है। ठीक है, मतलब 10% पॉसिबिलिटी। सेंटर्स को कभी भी ये मत सोचिएगा कि यहीं पे हमें पोस्टिंग मिलेगी, मुंबई दिया तो हमें पोस्टिंग मुंबई में मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वेदांता मुंबई में भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन पोस्टिंग कहाँ देती है आपको? या तो उनके हेड ऑफिस में गुड़गांव में, या फिर प्लांट लोकेशंस। आईटीसी भी मुंबई में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन पोस्टिंग कहाँ देती है? कोलकाता। विप्रो दिल्ली में भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन पोस्टिंग कहाँ देती है? बैंगलोर में। तो आपको ये जो पॉइंट है, राइट, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, कि सेंटर इस चक्कर में सिलेक्ट नहीं कर लेना है कि पोस्टिंग वहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ कंपनीज मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा दैट। हाँ, बोलिए।
हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये इंटरव्यूज ऑनलाइन होंगे कि हमको फिजिकली जाना पड़ेगा सेंटर्स पे? ऑनलाइन ऑनलाइन होंगे सारे ही इंटरव्यूज आपके ऑनलाइन। ओके, ठीक है सर। Right. So I'll send you the list of the companies. You will get a broader understanding. ठीक है। तो कैंपस की ब्रॉड क्लैरिटी आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उससे रिलेटेड विल डेफिनेटली डू अ सेशन। ठीक है, तो उस पॉइंट को आपको आगे ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो आप अगर जितने भी सेंटर्स हैं, ठीक है, इन सेंटर्स को अगर आप सिलेक्ट करते हो, लार्ज सेंटर लिया आपने, स्मॉल सेंटर लिया, जो भी सेंटर लिया आपने, एंड फॉर दैट मैटर सेंटर्स, ठीक है, आपने सपोज ऑफ कैंपस भी सोचा, तो एक पॉइंट है कि आपको किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए आज की तारीख में एक बड़ा सवाल होता है डोमेन, राइट, विच डोमेन टू सिलेक्ट। तो ये वैसा सवाल है कि विच कार टू बाय, राइट, आप कौन सी कार खरीदोगे। ठीक है, तो आज की तारीख में आप सीए बन चुके हो, राइट, आप लोगों को अब लग रहा होगा कि लेट्स बाय कार। ठीक है, तो आप कौन सी कार खरीदोगे। तो ये एक हो सकता है आप कोई ऐसी कार सोच रहे हो कि लाइक आई बाय समथिंग लाइक पोर्श और समथिंग, यस। लेकिन आपके दिमाग में क्या थॉट है, व्हाट वी नीड टू बाय इज व्हाट इज अवेलेबल, जो हमारे सामने अवेलेबल है, राइट, हमारे सामने जितने ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से ही हमें कुछ खरीदना है, नॉट समथिंग विच इज बियॉन्ड। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन है प्रोफाइल का, ये थोड़ा सा उसी तरह का है, व्हाट यू वांट एंड व्हाट इज अवेलेबल, राइट, इसके बीच का अंतर आपको समझना है। ये 5 चीजें आपके सामने दिखेंगी आपको, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट ऑब्लिक इंडस्ट्री, बैंक्स, फर्म्स एंड अदर्स। Investment banking, when I'm saying, I'm including management consulting also. So although investment banking and management consulting are two different fields, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, एकदम निश कैटेगरी है, हाईली पेड जॉब्स है। कॉर्पोरेट ऑब्लिक इंडस्ट्री इज द सेकंड वन, थर्ड इज बैंक्स, फोर्थ इज फर्म्स एंड फिफ्थ इज अदर्स। अदर्स लाइक something like fund accounting roles, sort of, sometimes where you need to a little bit do the system implementation sort of roles. तो ये उस तरह के roles हो जाते हैं। अब ये percentages क्या लगता है आपको, what these percentages denote? ये percentages क्या denote करते हैं आपके हिसाब से? Selection rate. Selection rate, good, or जॉब अपॉर्चुनिटी। job opportunities, yes, sort of job opportunities. Basically this percentages represents ये एक बड़ा स्टैटिस्टिक्स है, राइट। हम लोगों ने एक काफी बड़े पॉपुलेशन के ऊपर ये उनके ट्रेंड्स देखे थे, किसका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है। ये एक लाइक हम लोगों की क्लासेस में जो स्टूडेंट्स ने रहे हैं, उसके अलावा भी हमने काफी बड़ी पॉपुलेशन से तो देखा है। So 1% got the opportunity in IB and management consulting, 30% got opportunity in corporate or industry, around 20% in banks, another 35% in firms, and remaining in some other roles like system implementation. जैसे आपने सुना होगा Infosys में somebody has got job in ERP implementation, right? So इस तरह के जो roles हैं, somebody has got job in Intertrust as a fund accountant, somebody has got a job in Rev Guru as a revenue accounting person, something like that. तो ये वो प्रोफाइल, ये वो पर्टिकुलर रोल्स हैं जो अदर्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो आपको ये स्लाइड में क्यों बता रहा हूँ, इस स्लाइड को बताने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो रीजन ये है कि हमें रियलिटी पता चले मार्केट की, कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर थॉट रखा है अपना, सो उस थॉट के अलावा इज देयर एनीथिंग दैट वी शुड थिंक एट दिस मोमेंट, राइट। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग से ही स्टार्ट करना है, वन ऑफ माय स्टूडेंट, उनका ये बहुत ही क्लियर थॉट था
कि मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपको बस ये इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि डू यू रियली, यू शुड नॉट स्टिक टू वन पर्टिकुलर प्लान। आपका प्लान ए भी होना चाहिए और प्लान बी भी होना चाहिए। ऐसे मैं बहुत सारे मोटिवेशनल गुरुज को सुनता हूँ, तो कई सारे मोटिवेशनल गुरुज ये बोलते हैं कि लाइफ में आपका दो प्लान नहीं होने चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। दो प्लान होते हैं तो आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो। लेकिन देखो, मेरा पर्सनल थॉट बहुत अलग है इस चीज को लेके। मेरा पर्सनल थॉट ये है कि यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी। क्लोजली मैंने देखा है, लाइक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 2019 में एक स्टूडेंट थे हमारे पास, जिन्होंने बोला था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हूँ, मेरा पूरा आर्टिकल एक्सपीरियंस फाइनेंस में हुआ है, तो आई विल स्टार्ट माई करियर ओनली एंड ओनली इन फाइनेंस फील्ड। मुझे फाइनेंस में ही जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, इक्विटी रिसर्च में जाना है, इसी में जाना है मुझे। यू वोंट बिलीव, उन्होंने कैंपस की मैक्सिमम कंपनीज को छोड़ दिया था। बीइंग अ फर्स्ट अटेम्प्ट, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, मैक्सिमम कंपनीज को छोड़ दिया था उन्होंने, राइट। कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी से उनको शॉर्टलिस्टिंग नहीं आई। पूरा कैंपस निकल गया, पूरा स्मॉल कैंपस निकल गया। 3 महीने बाद ही एंडेड अप जॉब इन बिग फोर, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज ड्राई हो गई थी, पूरा मार्केट खत्म हो गया था। तो 3 महीने बाद अगर आप सोचते हो, तो इसलिए मेरा कहना है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप किसी निश प्रोफाइल के लिए ट्राई मत करो, डेफिनेटली डू अ वेरी गुड ट्राई। आईबी के लिए मैंने भी ट्राई किया है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आपको करना चाहिए, लेकिन अपना प्लान बी भी एक्टिवेट रखो। ऐसा नहीं कि आपने किसी और कंपनी के बारे में कुछ तैयारी नहीं करी। आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत पढ़ लिया, बट आपने इंडेक्स पूरा छोड़ दिया। सडनली आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंटरव्यू आ गया, आपकी शॉर्टलिस्टिंग सपोज आईटीसी में हो गई, बिना इंडेक्स के आप निकाल ही नहीं सकते हो इंटरव्यूज। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्लाइड दिखाने का एक ही पर्पस है, यू शुड हैव प्लान ए एंड प्लान बी, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट और है, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ। दैट अभी एक बहुत ये चीज चलती है मार्केट में कि आप अपना डोमेन सिलेक्ट करो, मुझे किस डोमेन में जाना है। प्लीज बिलीव मी, आप नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। प्रैक्टिकली अगर सोचोगे, आप नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। आप मुंबई सेंटर सिलेक्ट कर दो फॉर एग्जांपल, आपको शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है आईटीसी से, आपको शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है लेट्स से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, आपको शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है लेट्स से पीडब्ल्यूसी से, और आपको शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है एक्सेंचर से। पहली शॉर्ट लिस्टिंग आपको आ रही है कॉर्पोरेट से, दैट इज आईटीसी। दूसरी शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है आपको बैंकिंग से। तीसरी शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है आपको आईटी कंपनी से। चौथी शॉर्ट लिस्टिंग आपको आ रही है सम अदर फील्ड। आपको चारों के लिए प्रिपेयर करना होगा। हाउ विल यू डिसाइड एट दिस मोमेंट कि मुझे इस फील्ड में जाना है या इस फील्ड में नहीं जाना? सो ये जो गलत मिसकंसेप्शन कई बार स्टूडेंट्स लेकर चलते हैं कि मुझे अभी से डिसाइड करना है, वो नहीं हो पाएगा डिसाइड। यू नीड टू बी ओपन, और ये डिसीजन आपका होगा जब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप इंटरव्यूज क्रैक कर लोगे, हाथ में 2-3 ऑफर लेटर्स होंगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि ओके मुझे किस कंपनी में जाना है, ठीक है। तो ये जो एक थॉट चल रहा है कि लाइक फर्स्ट डिसाइड की डोमेन, इम्पॉसिबल है वो। आज आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे स्टेट ऑडिट में जाना है, कल को आपके पास स्टेट ऑडिट की एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, सब कॉर्पोरेट्स की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फिर क्या करेंगे? सो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा आप, that we need to open for all kind of roles and we need to prepare for almost everything. किसमें कितनी प्रिपरेशन करनी है वो हम लोग सेकंड हाफ में बात करेंगे जब कैंपस की डिस्कशन की बातें करेंगे, बट आई थिंक दिस पॉइंट हैज टू बी वेरी क्लियर, अदरवाइज आप अननेसेसरी एनर्जीज वेस्ट करोगे। आई कैन टॉक अबाउट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 hours कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग में क्या होता है, उसमें कितना पैसा मिलता है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए ना सामने। जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट देयर, देन आई एम सिंपली वेस्टिंग योर टाइम, राइट? सो आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। यस, आप लोगों के क्वेश्चंस इज
सर मेरे सर को एक्चुअली हमेशा से एक क्यूरियोसिटी है कि लाइक फ्रेशर्स जैसे अभी रिजल्ट आया एंड सडनली पीपल स्टार्टेड सेइंग कि मुझे इस फील्ड में जाना है या इस डोमेन में जाना है या ये प्रोफाइल मुझे चाहिए, बट ये डिसाइड या आइडेंटिफाई कर कैसे पाते हैं? जैसे मैंने अभी एग्जाम क्लियर किया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एक्चुअली ये होना क्या चाहिए, मतलब पर्टिकुलरली इवन मुझे तो प्रोफाइल के नाम भी अच्छे से नहीं पता है, कुछ एक दो चीज के पता है, या फिर एक मेरी आर्टिकलशिप एक मीडियोकर फर्म से हुई है। तो मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है कि एक्चुअली होता क्या है, बिग फोर्स में क्या प्रोफाइल्स है। इवन मुझे अभी अभी पता चला कि ओके इन्फोसिस वगैरह कंपनी को हम इंडस्ट्री रेफर करते हैं, एंड बिग फोर्स तो जनरली सबको मालूम ही है कि कौन है, बट क्या चीज होनी चाहिए बैंकिंग में, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या प्रोफाइल्स है, तो ये सब पता कैसे चलती है और बच्चे इतने क्लियर कैसे होते हैं? पर्टिकुलरली मुझे नहीं पता है या फिर जनरली नहीं पता होता है, बस लोग हवाबाजी करने के लिए थोड़ा बता देते हैं कि मुझे ये चीज पता है। बड़ा सही क्वेश्चन पूछा एक्चुअली आपने। और मेरे ख्याल से जो आपका सवाल है वही एक्चुअली थॉट है। मतलब ये बात क्लियर होना कि मुझे किस फील्ड में जाना है, राइट, ये लिटरली नहीं पॉसिबल होता है। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बैंक ऑफ अमेरिका से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी थी, और मुझे याद है हम लोग टाइम फिजिकल कैंपस होते थे, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग सब मुंबई सेंटर में बैठे हुए थे, दिन भर पूरा कैंपस चलता था। सो मुझे नहीं पता था कि मैं आज आइडिया में सिलेक्ट होने वाला हूँ या यस बैंक होने वाला हूँ। मेरे दो इंटरव्यू लाइन अप थे, एक यस बैंक का था, एक आइडिया का था। तो ये मुझे नहीं पता था मैं किस में सिलेक्ट होने वाला हूँ, किस में मैं पहले सिलेक्ट हो जाऊँ, क्योंकि अगर एक में आप सिलेक्ट हो गए तो अगले में नहीं बैठ सकते हो। तो पॉइंट ये है कि ये जो डिसीजन है, इट्स अ वेरी अर्ली डिसीजन वी आर टॉकिंग अबाउट कि कौन सी प्रोफाइल में जाना है, कौन से रोल में जाना है। पता होना बहुत जरूरी है किसमें क्या होता है, इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, किस रोल में क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये कार खरीद रहा हूँ तो इसकी प्राइस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी एवरेज क्या है। ऐसा मुझे मार्केट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन इस चीज को मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे यही लेना है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता क्या है, उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, आ, कितना उसका पैकेज रहता है, ये पता होना बहुत जरूरी है। बट डिसाइडिंग एट दिस मोमेंट डेफिनेटली इट्स अ इम्प्रैक्टिकल थॉट। ठीक है। तो किस प्रोफाइल में क्या होता है, ब्रॉडली वी पीपल अंडरस्टैंड इट, लेकिन क्विकली मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। और आगे भी लाइक जैसे हम लोगों की बैचेस तो ऐसे 11 से स्टार्ट होगी, लेकिन उसके पहले भी हम लोग इसके ऊपर एक और सेशन करेंगे जिसमें विल बी ब्रॉडली टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट ऑल प्रोफाइल्स आर अवेलेबल। इनफैक्ट आज भी कुछ डिस्कशन होगा सो दैट आपको एक क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी भी ये एक बहुत क्लियर स्लाइड है कि 30% अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री में, एंड इंडस्ट्रीज इज मेनली हायरिंग यू फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल के लिए 30% कंपनीज आपको हायर करती है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यू ऑल अंडरस्टैंड, फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल दैट। बैंक्स जनरली हायर यू फॉर क्रेडिट मैनेजमेंट, firms mostly for audit, lesser for taxation, राइट। सो एक ब्रॉड क्लैरिटी है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है कि हर रोल में क्या होता है और उसके अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसको डीप में डिस्कस करना जरूरी है। तो एक बार की डिटेलिंग इज डेफिनेटली वेरी मच रिक्वायर्ड, किस रोल में क्या होता है। लेकिन इस बात को डिसाइड करना कि मुझे यही लेना है, ये पॉसिबल नहीं है इस स्टेज पे। ठीक है। सो गुड क्वेश्चन गीतांजलि। यस, ग्रेट वन। यस, सर एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर जैसे मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरेस्ट है और हाँ। मैंने एग्जाम के बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग की भी लर्निंग करी है थोड़ी। तो हम्म। सर जैसे मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों को क्राइटेरिया रहता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सिलेक्ट नहीं करते, वो रैंक होल्डर्स या फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को सिलेक्ट करते हैं। तो हाँ, अपन सर छोटी कंपनी या मतलब कैसे जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर इंटरेस्ट हो उसमें, तो मतलब स्मॉल स्केल यस, से। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, हाउ टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। नेक्स्ट स्लाइड विल टॉक अबाउट दिस। यस, आपका पूरी सर सर मुझे ना किसी ने ये कहा था कि बिग फोर में पहले अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ना फिर आपको टाइम लिमिट दे देते हैं कि 4 दिन में आप बताओ कि आप ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे। तो समवन सेड मी कि बिग फोर को ना एकदम लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, पहले बाकी सब में अप्लाई कर लो।
so that आपको variety of options मिल पाए. तो is that correct, sir? जैसे देखो आपने अभी कहा कि हाँ मतलब आपके ये एक उस स्टूडेंट ने एंड में उनको बिग फोर में मिल ही गई थी आफ्टर 3 months. तो इज दैट करेक्ट कि उसको लास्ट ऑप्शन रखें? देखो ये डिपेंड करता है अटेम्प्ट्स के ऊपर। ये पूरा अटेम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके अटेम्प्ट्स ज्यादा हैं, राइट, somebody हैज अटेम्प्ट्स, और उन अटेम्प्ट्स की हम बात कर सकते हैं कि 4 अटेम्प्ट्स 5 अटेम्प्ट्स सॉर्ट ऑफ। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बिग फोर में पहले ही, तो ले लेना चाहिए वो 3 और 4 अटेम्प्ट्स। तो ले लेने का मतलब ये नहीं ज्वाइन कर लेना है आपको, ठीक है। ओके. उसका मतलब ये है कि आप ऑफर उनके इंटरव्यू में अपीयर हो, इंटरव्यू क्रैक करो, और जब वो आपको ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं तो उनसे थोड़ी सी टाइम लिमिट मांगो, ओके. ठीक है, बिफोर योर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ओके. आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी, ओके सर. राइट। Sir, I do have a question, sir. यस यस प्लीज। First of all, good afternoon, sir, and I'm really happy that you are taking this session. I have two questions. Number one is, if somebody has chosen a particular domain, suppose the domain which I am aspiring for, I'm not getting it. I Okay. got into audit. Then after 6 months or 1 year, can I shift to another domain? This is my first question. And how much tough it will be. Suppose I'm getting into a stat audit, or I'm getting in a basic firm. Then I want to jump to Big Four or something in which in indirect taxes or direct taxes or something like that. And the second question is that, so the number of attempts that matters is only for that final level, or it will be shown for throughout from foundation till final level? Because sir, frankly, I'm a bit aged because I'm 35, and I've cleared my final from 2018 till 2023. And before that, I was into my own business. So how much it will impact my campus placement, or will I really be able to fill the form or not? And also, sir, I've got exemption and good marks in finance because I got 81 marks in finance. But I know that those marks will not be entertained because there is a huge amount of gap. So what will be the means for a student like us, or the new chartered accountants like us who have taken a bit prolonged amount of time? What should be the best approach toward the industry? If we, as I want to go to the industry, I don't have any aspiration to go into a firm. It is the last option. If I'm not getting into any kind of industry, then go for a firm. Then you go for, okay, all right, got your question. देखो, so दो thing बात है. First point is that definitely, as I told in the very first slide, that we have many students who have many attempts, right? So last time हम लोगों के पास एक student थे, उनके I think somewhere around 18 attempts थे, right? अभी तक के highest. तो attempts definitely थोड़ा impact करते हैं, लेकिन fortunately he got his first job with EY, right? उनका पहला ही job EY में लगा, despite 18 attempts. तो इसका ये मतलब नहीं है कि like मतलब EY is a simpler option, या फिर attempt criteria नहीं होता है वहां पर. There are definitely ways to handle it. जिस attempts के केस में naturally like हम लोग classes में भी why we segregate, right? हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग attempt wise सेशंस ऑर्गेनाइज करें, जो कॉमन सेशंस हैं वो हो, और बाकी अटेम्प्ट्स वाइज सेशन. उसका रीजन ये है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बात. जहां तक प्रोफाइल्स में जाने का सवाल है, देखो ये बात सही है आपकी कि आपका प्लान ए अलग है, प्लान बी अलग है. आपका फॉर्म्स में जाने का जो प्लान है वो लास्ट रिजॉर्ट है. लेकिन मैंने जो आपको पहली स्लाइड बताई थी, दैट वेयर यू वांट टू रीच, यू मे नॉट गेट इन टुडे इटसेल्फ, राइट? हो सकता है कि आपको और 6 मंथ्स इन्वेस्ट करने पड़ जाए फॉर वॉट एवर रीजन. जैसे कई लोग होते हैं जिनकी आर्टिकलशिप बहुत एवरेज आर्टिकलशिप होती है. तो आप ये सोच लो कि आपने सपोज 5 इयर्स में सीए किया है, उसको आप मान लो 5.5 इयर्स में किया है, या 6 इयर्स में किया आपने सीए. आप ये जो अगले 6 महीने 1 साल है वो भी इन्वेस्टमेंट की तरह हो, लाइक 6 मंथ्स हमने एक बड़ा ब्रांड ले लिया, राइट? बिग फोर का ब्रांड ले लिया, और उसके बाद वी आर गेटिंग इनटू समथिंग. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू गेट इनटू लार्ज कॉर्पोरेट, राइट? आप बड़ी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो सकता है आपकी आर्टिकलशिप और बाकी चीजें ऐसी हो कि आपको एकदम बड़ी अपॉर्चुनिटी ना मिल रही. सो इजी ऑप्शन इज स्पेंड 6 मंथ्स 1 ईयर इन बिग फोर. जैसे बिग फोर में आप जाओगे
you will start getting good calls from larger companies. So आपको जो भी आपका थॉट है, राइट, डेफिनेटली उस थॉट को रखना है, लेकिन अगेन एज आई टोल्ड यू, लाइक हमें मार्केट की रियलिटीज के अकॉर्डिंगली अपनी एक्शंस को चेंज करना है, ठीक है। तो पहला तो आई थिंक ये पॉइंट है। दूसरा, अटेम्प्ट्स डेफिनेटली मैटर करते हैं, लेकिन फाउंडेशन और इंटर के जो अटेम्प्ट्स हैं वो उतने ज्यादा मैटर नहीं करते। बहुत ही कम कंपनीज जो थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट डिमांड करती है, जैसे वेदांता थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट डिमांड करती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ जो डे प्रीमियर वाली जो कंपनीज हैं, उसमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो क्लियरली बोल भी देती हैं कि हम लोगों को थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट चाहिए, और कुछ कंपनीज बताती नहीं है, वो आखिरी तक उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करती। तो वो, लेकिन आप उनका अगर पास्ट ट्रेंड देखोगे तो उससे आपको आइडिया लगता है, right? And so the next question is that if I get a job in a different profile which I don't aspire, see my bottleneck is sir that I am from an old syllabus student. देखो उसका जो आंसर है, राइट, वो आंसर ये है कि विद इन 1 ईयर इफ यू विल स्विच, राइट, नॉर्मली यू वोंट गेट दैट प्रॉब्लम, राइट। आप 1 साल में अगर स्विच करते हो ना तो ठीक है, मतलब कंपनी आपको एज अ फ्रेशर ही कंसिडर करेगी। आप सपोज बैंक में चले गए, फिर आपको रियलाइज हुआ कि बैंकिंग इज नॉट फॉर मी, राइट। अगर आप कॉर्पोरेट में चले गए और आपको लगा कि नहीं कॉर्पोरेट इज नॉट फॉर मी, तो वो कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 9 मंथ्स, 1 ईयर। लेकिन 1 साल के बाद जब हम स्विच करने की कोशिश करते हैं तो फिर प्रोफाइल स्विच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। Thank you, sir. सर यस, तो मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि यदि 108 साइन नहीं होता है तो कैंपस नहीं दे पाते हैं क्या स्टूडेंट्स? एक चीज का डाउट था ये मुझे, ये देखो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। उसके लिए उन्होंने 31 अक्टूबर तक की डेट दी है, कि यस सर, वही चीज पूछनी थी। राइट, 31 अक्टूबर तक की डेट दी है। अप्लाई और बैठ सकते हैं हम लोग? हाँ, मतलब आपकी आर्टिकलशिप हो जानी चाहिए तब तक। ठीक। Sir, और सर ऑफ I कैंपस have- और ऑन कैंपस का भी प्लीज थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि ऑफ कैंपस यदि हम लोग चले जाते हैं कोई कंपनी में और यदि वो चीज कैंपस में आ जाती है वो कंपनी, तो फिर हम लोग उसको मतलब देख सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? उसका क्राइटेरिया ये रहता है कि सपोज आप अभी पीडब्ल्यूसी में अपीयर हो गए और पीडब्ल्यूसी ही वापस कैंपस में आ गई, तो अभी 2 पॉसिबिलिटी, पीडब्ल्यूसी में अगर कोई अपीयर होते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद वो उसको ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर वो उनका सिलेक्शन नहीं होता है। 2 पॉसिबिलिटी बनती है। दोनों ही केस में एक 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड लग जाता है। मतलब आप एक बार अपीयर हो गए अगर 6 मंथ्स तक आप उसमें वापस अपीयर नहीं हो सकते हो। ये जो 6 मंथ्स में आपको बता रहा हूँ, ये कंपनी टू कंपनी बहुत वेरी करता है। किसी किसी कंपनी में ये 1 ईयर का भी है, किसी में ये 3 मंथ्स का भी है, ठीक है। और ये कई बार ऐसा भी होता है कि पीडब्ल्यूसी के लिए अलग है और पीडब्ल्यूसी एसडीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। सपोज आप पीडब्ल्यूसी में बैठ गए अभी, लेकिन पीडब्ल्यूसी एसडीसी इज नॉट कंसिडरिंग दैट कूलिंग ऑफ पीरियड, क्योंकि वो एक अलग एंटिटी है। बट एक ऐसा ब्रॉडर रूल ये मान लो कि अगर आप किसी कंपनी में अपीयर हो गए हो तो 6 महीने आप उस कंपनी में अपीयर नहीं हो सकते। सर फिर अभी जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि ऑफ कैंपस ट्राई कर लो, तो फिर अभी मतलब ट्राई नहीं करना चाहिए? जब कैंपस में बैठना है तो फिर कैंपस नहीं, यही गलती है। ट्राई हर जगह करना है। मैंने आपको क्या बोला है, आप हर जगह ट्राई करो, हर जगह भेजो अपना रिज्यूमे। अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो ज्वाइनिंग डेट को आप नेगोशिएट करो कि आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन बिफोर दिस डेट। हर कंपनी जनरली 3 से 4 हफ्ते देती है आपको ज्वाइन करने के पहले, तो 3 से 4 हफ्ते में आपकी कैंपस हो जाएगी। सर वो कूलिंग पीरियड लग गया तो फिर हम कैंपस में नहीं हो पाएंगे ना उन कंपनीज में? ठीक है ना। अभी सपोज आपने पीडब्ल्यूसी अगर आपको ज्वाइन करना ही है तो आप वैसे भी कर लोगे, और नहीं हाँ, करना है इसलिए आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज देखो। हाँ वो चीज तो है। बस वो तो पैकेज का रहता है कि ऑफ कैंपस थोड़ा कम पे करते हैं और ऑन कैंपस सब बोला जाता है कि पैकेज थोड़े बढ़ा देते हैं। मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है जब कंपनीज में स्टूडेंट्स जब ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद तो आपस में ये ऐसा डिस्कशन है जो हर कोई एक दूसरे से करता है, राइट। और कोई डिस्कशन हो ना हो, ये ऐसा कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन है जो, ये ऐसा राज है जो हर एक को पता है, वैसी बात है। तो हर एक को हर एक की सैलरी पता होती है, तो वो कंपनीज को भी पता है कि ऐसा होगा, तो वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर डिससेटिस्फैक्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं। Sir, I सर have a अगर question, मैं sir. Sir, one more question, sir. Sir, the question I have, I think it's a bit irrelevant, but still I'm asking. We are general category student.
do CA campus placement do have any SC, ST, OBC quotas? Because in that case also our position get eroded. कुछ PSUs में रहता है वो वाला particular PSUs में that thing is there. So मैं ना थोड़ा सा डिस्कशन आगे कैरी करता हूँ, राइट? हम लोग लास्ट में काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऑटोमेटिकली अभी आंसर हो जाएंगे आगे की स्लाइड्स में, राइट? क्योंकि हम लोगों ने उसका जो स्ट्रक्चरिंग है वो थोड़ा उसी स्टाइल में किया है, that you will get lot of answers automatically, right? So just keep your questions in your mind and we'll take if it doesn't get answered. इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज सो इजीली अवेलेबल। देखो इंटरव्यूज के लिए दो बातें हैं, पहली तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए और फिर आपके पास उसका स्किल सेट होना चाहिए उसको क्रैक करने का। तो इजीली अवेलेबल कौन सा है? इंडस्ट्री, फर्म्स एंड बैंक्स। ये तीनों ऐसा है कि पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर यू, राइट? आपका बिल्कुल स्वागत हो रहा है उसके अंदर। ऐसी प्रोफाइल्स हैं, आप जिस दिन रेज्यूम अपलोड करोगे आपको आपके आसपास की सिटीज से आपके आसपास की प्रोफाइल्स, इंडस्ट्री, फर्म्स और बैंक्स, यहाँ से कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंडस्ट्री मतलब जैसे अगर हम इंदौर की बात करें तो जैसे जो पीथमपुर में जो इंडस्ट्रीज हैं, राइट, आयशर मोटर्स, दिस दैट। ओवरऑल इंडिया लेवल की बात करें तो रिलायंस, L&T, और मैक्सिमम जो आप कंपनीज देखोगे कैंपस की उसमें, तो आपको यही कंपनीज मिलेगी विच आर इंडस्ट्रीज। विप्रो, दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर दैट कैटेगरी। मतलब जो भी कंपनी आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उनके फाइनेंस डिवीजन के लिए हायर कर रही है वो बेसिकली इंडस्ट्री कैटेगरी है। जैसे मेरा जो पूरा करियर निकला है वो इंडस्ट्री में निकला है। इसमें जो टॉप मोस्ट पोजीशन CFO की है, राइट? यहाँ पर आप पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीखते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग सीखते हो, थोड़ा बहुत टैक्सेशन सीखते हो, फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर बन जाते हो। फाइनेंशियल कंट्रोलर बनने के बाद आप थोड़ा बहुत बिजनेस प्लानिंग सीखते हो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीख के इसमें आप CFO बन जाते हो, राइट? सो इंडस्ट्री के जितने भी CFOs हैं, बेसिकली जितने भी हम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बात कर रहे हैं, वो बेसिकली यहीं से ग्रो करते हैं। इजीली अवेलेबल, मतलब आप जिस दिन अप्लाई करोगे उस दिन आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। इट इज लाइक दैट। चार्टर्ड अकाउंटेंट आर मोस्टली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज यू नो द कंप्लायंसेस, राइट? हु नोज बेटर कंप्लायंसेस, GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, किसको पता है आपसे ज्यादा बेटर? ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है, यू विल इजीली गेट। बस ये है कि पैकेजेस बहुत वेरी करते हैं। इंडस्ट्री में पैकेज वेरी करते हैं, करीब 10 लाख 12 लाख। कई बार ITC की बात करें तो ITC गिव्स यू 25 लाख। लास्ट टाइम रैंक होल्डर्स को वेदांता ने 30 लाख तक ऑफर किया था, ठीक है? तो इंडस्ट्री में पैकेज बहुत वेरी करते हैं। आप अपनी सिटी में अगर कंपनीज ढूंढोगे तो कई कंपनीज आपको बोलेंगे कि विल गिव यू 4 लाख। आपको लगेगा कि यार क्या कंपनी है 4 लाख ऑफर कर रही है, लेकिन अब इंडस्ट्री में होता ही ऐसा है, छोटी कंपनी है तो कम ऑफर करेंगी, जैसे जैसे स्केल बढ़ती जाती है इट बिकम्स बिगर। सो इंडस्ट्री इज लाइक दैट, लेकिन वहां पर ढेरों ओपनिंग्स हैं और आप लोगों के लिए हमेशा दरवाजे खुलेंगे। सेकंड ऑप्शन इज फर्म्स। फर्म्स आपको पता ही है, बिग फोर्स, राइट? बिग 4, बिग 6, बिग 8 फर्म्स एंड ऑल काइंड ऑफ रूल्स, ऑडिट, टैक्सेशन, राइट? मेनली इसमें एक ही बात करनी है हमें, ऑडिट में ओपनिंग ज्यादा होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कम होती है, ठीक है? अगर ऑडिट में 10 ओपनिंग्स है तो टैक्स में 1 और 2 ओपनिंग्स होंगी। रेशियो इज 10:1 और 10:2, ठीक है? तो फर्म्स में अगर आप जा रहे हो तो माइंडसेट बना के ही जाओ कि स्टेट ऑडिट मिलने वाला है, ठीक है? अब उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं कि ऑडिट में भी स्टेट ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, ग्लोबल ऑडिट है, फॉरेंसिक ऑडिट है, कौन सा लेना चाहिए? तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशन, बट फर्म्स में मोस्टली स्टैट्यूटरी ऑडिट मिलता है और हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपनिंग्स आपको इसी में मिलेंगे। थर्ड इज बैंक्स, राइट? बैंक्स मेरे हिसाब से ये वो एक अपॉर्चुनिटी है जो कई लोगों को लगता है कि हमें अपने होम टाउन में ही रहना है, ठीक है? कई लोगों को प्यार होता है अपने होम टाउन से, तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो बैंक्स विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एक तो आपको बड़ा ब्रांड मिलेगा और पैसा भी अच्छा मिलेगा, राइट? लास्ट टाइम वन ऑफ माय स्टूडेंट, उनको इंदौर में ICICI बैंक ने 10 लाख ऑफर किए। सो आपको अगर ब्रांड भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और अच्छी प्रोफाइल भी चाहिए, सो दिस इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है? और योर प्रेफरेबल सिटी चाहिए, ठीक है? तो ये एकमात्र ऐसा रोल है जो आपको Tier 1 टाउन, Tier 2 टाउन और Tier 3 टाउन तीनों मिल जाता है, ठीक है? सो इंडस्ट्री, फर्म और बैंक, ये तीनों ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आपको
बहुत इजी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप आपके सीनियर्स को बोलोगे, आप naukri.com पे या फिर जो भी किसी जॉब पोर्टल पे अपलोड करोगे, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज। व्हाट इज डिफिकल्ट टू गेट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग एंड इक्विटी रिसर्च। ये तीनों बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें MBA फ्रॉम Tier 1 कॉलेज गिव्स यू अ वेरी वेरी टफ कॉम्पिटिशन। पूरे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में यू विल फाइंड MBA फ्रॉम Tier 1 कॉलेज, तो बहुत कम स्कोप बचता है। उस स्कोप में भी ज्यादा करके रैंक होल्डर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वो फिल कर देते हैं, फिर जो और कुछ बचता है तो वो फिर फर्स्ट अटेम्प्टर्स जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जो एक स्कोप है ये स्लाइटली डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, ये डिफिकल्ट है। इंस्टीट्यूट का कैंपस देखते हो, हार्डली 1 या 2 कंपनी आती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, राइट। जितने भी ग्रीन है, बेसिकली ये जो ग्रीन साइड में, यही कंपनीज आती है इंस्टीट्यूट के कैंपस। तो अगर आपको IB में जाना है, जो थोड़ी सी नॉन ट्रेडिशनल रोल्स है, उसके लिए आपको एक अप्रोच ही अलग है, और मैं उस अप्रोच के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आउट करता हूँ आपको। ये रियल केस है बैंगलोर सेंटर का। 13 फर्म्स, 2 फंड अकाउंटिंग रोल्स, 1 IB, 18 इंडस्ट्री एंड 2 IT कंपनीज, राइट। 38 कंपनीज में से केवल 1 आई है IB के लिए, बाकी सारी कंपनीज या तो बैंक से या फर्म से या इंडस्ट्री है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर है कि हमारी जो एक्सेप्टेबिलिटी है इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री में, फर्म्स में और बैंक्स में ये ज्यादा है कंपेयर टू IB एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग, ठीक है। तो ये थॉट इसलिए हमको क्लियर होना जरूरी है ताकि आप आपका प्लान A और प्लान B अकॉर्डिंगली डिजाइन कर पाओ, ठीक है। सो लास्ट 5 मिनट्स में मैं थोड़ा इन चीजों को जल्दी से ब्रीफ आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को ये जो एक डिस्कशन है, इस डिस्कशन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, लेकिन जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है, ऑफ कोर्स हम लोग आगे एक और सेशन करेंगे जिसमें थोड़ा सा रोल्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बट ब्रॉड लेवल अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर ये है कि अगर आपको IB रोल्स में जाना है, आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल्स में जाना है, तो आपको ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना। कैंपस में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना। ऑफ कैंपस कैसे करना है अप्लाई? तो सबसे पहले तो ऑफ कैंपस के लिए ये करो कि जितने भी लोग ऑलरेडी आपके कांटेक्ट में जो IB से जुड़े हुए हो, अगर किसी का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कांटेक्ट है या आप कनेक्टेड हो, ठीक है, उनसे आप कनेक्ट हो जाओ। जैसे कि लाइक यू नो मी, तुम आप यू चेक विथ मी, डू यू नो एनीवन इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? इफ आई टेल यू यस, देन कनेक्ट विथ देम, देन चेक विथ देम आर देयर एनी अपॉर्चुनिटीज। तो इसका तरीका केवल कनेक्ट्स ही है, राइट, कॉन्टैक्ट्स और कनेक्ट्स, इसके थ्रू ही आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन दूसरा, क्या आपको कॉन्टैक्ट्स के थ्रू सीधे फॉरेन बैंक्स में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? तो आंसर इज नो, राइट। फॉरेन बैंक्स का फ्रंट ऑफिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन मिलना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये चीज हमें Tier 1 MBA कॉलेज में भी हम देखते हैं कि वहां पे भी हर एक को नहीं मिलती है, right? So that is something which is difficult. So what should be your approach? Your approach should be targeting Tier 2 firms. Tier 2 firms मतलब something like Anand Rathi, something like Motilal Oswal, ऐसी कंपनीज जो इंडियन बेस्ड कंपनीज हैं जिनका बजट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आपको वो एक स्टार्ट भी देती है। लार्ज CA फर्म्स, कई CA फर्म्स आप जानते हो जो IPO में हेल्प करती है। तो क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उस तरह के रोल के लिए, आप पैकेज कॉम्प्रोमाइज कर इन कंपनीज को ज्वाइन कर। ये कंपनीज हमको देंगी अपॉर्चुनिटीज। मुंबई में एक फर्म है, इफ आई रिमेम्बर करेक्ट, बंसी मेहता एंड कंपनी, राइट। काफी वर्क है उनके पास फाइनेंस रिलेटेड, प्रोवाइडेड आपको बस ये बात को थॉट को ड्रॉप करना पड़ेगा कि मार्केट में तो 12.45 इज द एवरेज पैकेज, तो मैं 12.45 से कम में नहीं ज्वाइन करूंगा। अगर आपने ये थॉट रखा तो फिर आपके लिए ये वाले दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो Tier 2 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज है उनके पास बजट ज्यादा नहीं है, तो 2-3 साल आपको देने पड़ेंगे पहले वहां पर सीखने के लिए, और उसके बाद फिर आपको ग्रोथ मिलेगी। तो ये एक डिसीजन है जो आपको पैकेज के ऊपर लेना रहेगा। इफ यू रियली वांट टू गो इनटू IB, देयर आर ऑप्शंस,
but you need to compromise on the package. Make your mind in the beginning itself, right? दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, पैकेज भी हाई मिल गया और आईपी की प्रोफाइल भी मिल गई, ये दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है? तो आप अगर उसके लिए रेडी रहते हो तो यस, देयर आर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज। और इसका एक ऑल्टरनेट रूट है कि ज्वाइन ड्यू डिलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ बिग फोर। एक डिपार्टमेंट होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, एफडीडी जिसको बोलते हैं। उसमें क्या काम होता है, उसमें कोई भी डील होती है, अगर कोई भी मर्जर एंड एक्विजिशन की डील होती है, इन्वेस्टमेंट डील होती है, तो दे बेसिकली डू दी ड्यू डिलिजेंस, राइट? अकाउंटिंग वेरिफिकेशन, पेबल्स वेरिफिकेशन, वो हर चीज को वेरीफाई करते हैं। तो काम ऑडिट का ही होता है, लेकिन एक डिफरेंट एंगल होता है। यहाँ पर हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट नहीं करते हैं, हम इस एंगल से करते हैं कि यहाँ पे डील होने वाली है। थोड़ा सा आपका जो एंगल है वो अलग टाइप का हो जाता है, यू गेट डीपर इनटू इट, राइट? आपका जो स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो एंगल है वो 10 टाइम्स डीपर हो जाता है, राइट? सो ये एक और तरीका होता है इस तरह के रोल्स में जाने के लिए, एफडीडी। क्योंकि एफडीडी में धीरे धीरे अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर विल स्टार्ट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो ये स्लाइड का एक फोटो आप ले लो। इसमें बेसिकली अप्रोच अलग अलग लिखी हुई है, या तो एमबीए और सीएफए, राइट? सबसे पहले वाला ऑप्शन तो मैं यही बोलता हूँ, एमबीए सीएफए। लेकिन स्टूडेंट बोलते हैं सर बहुत पढ़ाई कर ली, अब कोई मन नहीं आगे कुछ पढ़ाई करने का, और वो सही भी है। आप लोग ऑलरेडी इतनी पढ़ाई कर चुके हो कि अब मैं अगर आपको बोलूंगा कि एमबीए कर लो, एक काम करो, तो आप बोलोगे कि सर अभी के अभी हम मीटिंग एग्जिट कर रहे हैं, राइट? बहुत हो गया आपका। तो इसलिए मैं जनरली बताता नहीं हूँ ये वाला पॉइंट। बट ऐसे देखा जाए तो एमबीए और सीएफए, राइट, ये एक पॉइंट होता है। उसके बाद टीयर 2 फर्म्स, न्यू स्टार्टअप फंड्स, इनको आप प्लान कर सकते हो। इंडियन इक्विटी रिसर्च हाउसेस, फिर ड्यू डिलिजेंस, एफडीडी जो प्रोफाइल है दैट वन, और बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। जैसे कि कई तो फ्रंट एंड होते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में काम कर रहे हैं, जेपी मॉर्गन में काम कर रहे हैं, वो बैक एंड में काम कर रहे हैं, यूबीएस में काम कर रहे हैं अभी। बैक एंड मतलब कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फ्रंट एंड में नहीं, बैक एंड या मिडिल एंड, तो वो सपोर्ट रोल में एक तरह से, तो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम बैक एंड से फिर फ्रंट एंड में आ पाए। कई लोग आ जाते हैं, कई लोग नहीं आ पाते वैसे। तो दीज आर सम ऑफ द रूट्स। अभी तो मैंने इसको शॉर्ट में बताया, विल प्लान अ सेशन जहाँ पे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डीपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर भी किसी का कोई आईपी को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो इस दे कैन सर्टेनली आस्क। सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इतना ज्यादा हाइप्ड क्यों है? मतलब यहाँ पैसा ज्यादा है या रेपुटेशन पैसा ज्यादा? पैसा पैसा बहुत है। मतलब पैसा ऐसा है कि सपोज किसी का 25 lakhs का पैकेज है, तो हो सकता है कि उनको उतने का ही बोनस मिला उस साल, तो उनका पैकेज हो गया 50 लाख। और ग्रोथ भी ऐसी नहीं है 10% 12%, यहाँ पर जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। सपोज किसी ने 25 से स्टार्ट किया, सपोज अगले ही साल हो सकता है उनका पैकेज 40 lakhs हो जाए, 40 से सीधे 60 lakhs हो जाए। तो ये पैकेज के कारण, राइट? और ऑब्वियसली पैकेज अगर ज्यादा होता है तो काम भी उतना ही करवाते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको वर्क लाइफ बैलेंस 0 मान लो, इतना काम करना रहेगा। पहले 2 साल तो बहुत बहुत काम करवाते हैं, ठीक है? तो हाँ बोलिए। तो इसमें एमबीए स्पेसिफिकली टीयर 1 से करना जरूरी है कि टीयर 2 भी कर सकते हैं? टीयर मतलब 2 से क्या मेरा डिग्री? सजेशन ये है कि टीयर 2 से उतना ज्यादा, और फिर वो ही बात आ जाती है, स्ट्रगल वैसे ही हो जाएगा। टीयर 2 से अगर आपने एमबीए किया तो जो स्ट्रगल आज है लगभग वैसे ही स्ट्रगल रहेगा। टीयर 1 से क्या है कि वहां पर डायरेक्टली कैंपस में कंपनीज आती है, ये वाली। मतलब विथ जॉब हम कैसे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं एमबीए के लिए या फिर सीएफए के लिए? अच्छा, हायर स्टडीज के लिए वो मैं बात करता हूँ, ठीक है? क्योंकि वो एक अलग सवाल है, तो उसको लास्ट में लेते हैं हम लोग, ठीक है? आईबी वाला पोर्शन सर क्लियर है? जैसे मैंने एमबीए हाँ सर मैंने एमबीए जो है यहाँ पर जीएसआईटीएस कॉलेज का जो रिसर्च हाँ कॉलेज हाँ, है, जीएसआईएमआर, राइट। जीएसआईएमआर, मैंने वहां से किया है। बट वो कंप्लीट होने के बाद मैं अभी 1 साल का जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही हूँ आईआईएम तिरुचिरापल्ली से। तो क्या उसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है? और शॉर्टलिस्टिंग में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, जैसे मेरा अभी 6 अटेम्प्ट्स हो गए थे, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो ज्यादा है, बट ये जो वैल्यू एडिशन है इसकी वजह से क्या शॉर्टलिस्टिंग में कुछ बेनिफिट हो सकता है, या फिर वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की वजह से रिजेक्शन हो ही जाएगा कैंपस में? देखो मतलब डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, और इसका आंसर अगेन आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट स्लाइड,
right? Next slide is like that. I think this is just a matter of 3-4 slides. उसके बाद we'll come on to that one, which is definitely the most important discussion. That is number of attempts. ठीक है. एक अदर देन आईबी का डाउट है मेरा. हाँ बोलिए. सर अगर जैसे हमको गल्फ कंट्रीज में जॉब के लिए जाना है और कैंपस में अभी तक मतलब कैंपस में अपने को लास्ट डेट पे अपने को अप्रूवल देना है अपने ज्वाइनिंग का, और सर अपने पास कोई ऑफर नहीं रहता है गल्फ कंट्री में, तो अपन कैंपस में अप्रूवल दे देते हैं. फिर अगर बाद में अपने को जैसे कैंपस में हमने बैंकिंग में अप्रूवल दे दिया तो बाद में दुबई में गल्फ कंट्रीज में जा सकते हैं क्या, या कुछ प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर मैंने जनरली सुना है कि अगर अपन बिग फोर से स्टार्ट कर दे तो ही फिर अपन दुबई में जा सकते हैं गल्फ कंट्रीज में. नहीं ऐसा नहीं है. देखो वहां पर भी अगेन जो अगर ज्वाइन करना है ना तो इजीएस्ट रूट इज दैट यू नीड टू स्पेंड 2 वीक्स ओवर देयर. आप अगर सोचोगे ना कि मैं यहाँ से रेज्यूमे भेज के मेरे को इंटरव्यू कॉल आ जाएंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी 10% है. जितने भी स्टूडेंट्स अभी मेरे वहां पे काम कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम ने वहां पर ही गए, 2 वीक अपना वहां पर रहे, और उनकी पॉसिबिलिटी 90% बढ़ गई. मतलब मुझे नहीं मिला कोई भी ऐसा कि जो वहां 2 वीक रहा और उसको जॉब नहीं मिला, है ना. तो यहाँ से रेज्यूमे भेजने की बजाय कोशिश ये करो कि वहीं चले जाओ. कुछ कनेक्ट चाहिए तो मुझसे बात कर लेना, मैं आपको कुछ लोगों से कनेक्ट करा दूंगा. सर अगर बिग फोर ग्लोबल में हम जा रहे हैं, अगर हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके बाद में हम इंडियन इंडस्ट्री के लिए एलिजिबल रहते हैं कि नहीं? हम अगर इंडियन इंडस्ट्री में स्विच करना चाहते हैं तो कोई डिफिकल्टी आती है क्या? ये एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है. देखो मतलब स्विच करने वाला, और ये पॉइंट आप लोग सभी लोग याद रखिएगा कि स्विच फर्स्ट ईयर में इजी है, फर्स्ट ईयर के बाद हर स्विच डिफिकल्ट है अगर आप इंडस्ट्री स्विच कर रहे हो. whether you're moving from banking to corporate to firm to global, कोई भी स्विच जो है 1 साल के बाद फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और जैसे जैसे साल निकलते जाते हैं आप उस रोल में और पक्के होते चले जाते हो. मैंने पहला साल टेलीकॉम में निकाला, अगला जॉब भी मुझे टेलीकॉम में मिला, अगले 3 साल मैंने फिर टेलीकॉम में निकाले, मुझे मेरा तीसरा जॉब भी टेलीकॉम में मिला. तो आप पक्के होते चले जाते हो उसमें, राइट. सो लेकिन ये एक अलग बात है कि जब आप बहुत जनरलाइज वर्क कर लेते हो इंडस्ट्री के अंदर, तो समटाइम्स यू गेट अ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. जैसे मुझे फिर सीएफओ की अपॉर्चुनिटी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मिल गई थी, लेकिन वो इंडस्ट्री मेरी चेंज हो गई टेलीकॉम टू हेल्थ केयर, बट काम मेरा वही था, राइट. वहां पे भी मैं सॉर्ट ऑफ सीएफओ काइंड ऑफ वर्क कर रहा था, हेल्थ केयर में भी मुझे सॉर्ट ऑफ सीएफओ का रोल मिला. ठीक है. सो this particular slide is about one was about investment banking, this is about corporate. I am sure ये स्लाइड आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छा, राइट नाउ इट इज 12:30, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, राइट, मुझे थोड़ा सा आप लोगों का एक क्विक फीडबैक चाहिए कि हम लोग इसको हाफ एन आवर और स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली आई आस्क्ड यू फॉर 90 मिनट्स, राइट. लेकिन अभी हमारे कैंपस की प्रोसेस, कैंपस के क्वेश्चंस बाकी हैं, राइट. सो कैन वी स्ट्रेच इट फॉर अनदर 30 मिनट्स? यस यस सर. यस सर. यस. Yes, sir. थोड़ा सा क्विक इफ यू कैन टेल मी. यस यस यस, ऑलराइट, थैंक्स. Yes, sir. ओके ग्रेट, थैंक यू वेरी मच. यस, चलिए अच्छी बात है. So this slide is basically about industry, right? This slide basically talks about CFO, right? आपको अगर इंडस्ट्री में ज्वाइन करोगे आपका एस्पिरेशन रहेगा CFO का. ये हाईएस्ट पोजीशन है, और इनके अंडर में आप देख रहे हो अलग अलग वर्टिकल्स: अकाउंटिंग, ट्रेजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, फंड रेजिंग, इंटरनल ऑडिट. तो मेरा एक क्विक क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो नंबर्स लिखे हैं ऊपर, ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ ओपनिंग्स. नंबर ऑफ ओपनिंग्स, राइट. सो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में 100 पीपल आर वर्किंग, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. अगर 100 लोग काम कर रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो उसमें से 70 आर वर्किंग फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ये डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट. और ये थियोरेटिकल नहीं बता रहा हूँ आपको, जनरली आप हर डिपार्टमेंट में ऐसे ही देखोगे, हर फाइनेंस फंक्शन के अंदर 70 लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम कर रहे हैं. वो क्या काम कर रहे हैं बेसिकली? वो अकाउंट्स रिसीवेबल में, अकाउंट्स पेबल में, फिक्स असेट्स में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में. ये बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं उसके अंदर. तो
इसलिए आप देखते हो कि जो ज्यादा करके ओपनिंग्स आती है वो इसी वर्टिकल के लिए आती है, क्योंकि डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट ही सबसे ज्यादा इस डिवीजन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लोग बोलते हैं हमें ट्रेजरी ज्वाइन करना है, लेकिन उसकी ओपनिंग नहीं है। क्यों होगी उसकी ओपनिंग? हर कंपनी में 3 लोग हैं, उससे ज्यादा लोग ही नहीं है उसमें ट्रेजरी। वर्सेस 70% पीपल आर वर्किंग इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जिसमें जितने लोग रिक्वायर्ड है उतनी ही उसमें मार्केट में ओपनिंग्स रहेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में यू विल फाइंड 15, टैक्सेशन में यू विल फाइंड 10, फंड रेजिंग में 2, इंटरनल ऑडिट में 2-3 लोग। तो ये इस साइड से आपको एक बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जिसमें सबसे ज्यादा ओपनिंग्स होंगी उसी के लिए कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगे। तो रिलायंस की बात करें या फिर एल&टी की बात करें, विप्रो की बात करें, इन्फोसिस, टीसीएस, एयरटेल, ब्रिटानिया, राइट, मैक्सिमम कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस बात को आपको याद रखना है, और इसका ही यही एक कारण है जिसके कारण इंडेस बिकम सो इम्पोर्टेंट। आप कैंपस में बिना इंडेस की प्रिपरेशन करके जा रहे हो, मतलब आप बहुत बड़ी रिस्क लेके जा रहे हो। इंडेस हैज टू बी योर फर्स्ट थिंग दैट वन हैज टू प्रिपेयर। मतलब कैंपस के अंदर मेरे को बैंक्स के अलावा कोई कंपनी याद नहीं है जिसने इंडेस कवर नहीं की। बैंक्स बिल्कुल भी कवर नहीं करती है, राइट। क्रेडिट मैनेजमेंट के रोल के लिए आप जा रहे हो, मतलब आपको इंडेस नहीं करना प्रिपेयर। लेकिन उसके अलावा कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडेस नहीं पूछ रही है? एवरी कंपनी, राइट। और उसका रीजन क्लियर है आपको, क्योंकि एफआर के लिए ही ओपनिंग्स आ रही है। और एफआर के लिए ओपनिंग्स क्यों आ रही है? क्योंकि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यस, सो इस स्लाइड का डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंस था कि आपको एक ब्रॉड क्लैरिटी आ जाए। FP&A ऑल्सो इज वेरी गुड। कई लोग बोलते हैं कि FP&A में मतलब थोड़ा एनालिटिकल वर्क होता है, और वो सही भी है। इट्स वेरी गुड फंक्शन। आई स्टार्टेड माय करियर इन आइडिया विद FP&A डिपार्टमेंट। वेरी गुड डिपार्टमेंट, आपको उससे पूरा बिजनेस सेंस क्लियर हो जाता है। लेकिन अगेन ओपनिंग्स आर लिमिटेड। अगर आपको मिलता है FP&A तो डेफिनेटली डू ज्वाइन इट, लेकिन इसको आप अपनी प्रायोरिटी मत बनाना कि लाइक ये मिलेगा तो ही हम ज्वाइन करेंगे। ऐसी कोई इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है, ठीक है। बट ओवरऑल आई वुड से इट्स अ गुड डिपार्टमेंट, राइट। वन हैज टू सर्टेनली ऑप्ट फॉर इट अगर ये मिलता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पर्टिकुलर स्लाइड में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यस डेफिनेटली यू मे शेयर। तो एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं हाँ जी। कि ना कौन सी ऐसी फील्ड है कौन सी ऐसी ब्रांच रहेगी जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे? ऑलराइट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। वर्क लाइफ बैलेंस में आप मेंटेन कर पाओगे? सो ये आंसर है बेसिकली कॉर्पोरेट्स। मतलब यही जो स्लाइड है बेसिकली कॉर्पोरेट्स में सबसे बेटर होता है, ठीक है। मतलब ये भी मैं जनरलाइज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हर कॉर्पोरेट का अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर कंपैरेटिवली बात करें तो कॉर्पोरेट्स में फिर भी वर्क लाइफ बैलेंस सबसे बेटर होती है। फर्म्स का तो आपने सुना ही होगा। बिग फोर में जो आपके दोस्त लोग हैं उनसे बात करिएगा, राइट। बिग फोर में कैसा चल रहा है वो आपको बताएंगे। यस सर, वो 15-15 घंटे काम कर रहे हैं सर, इसलिए मैं वही सोच रही हूँ कैसे करेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो कंपैरेटिवली, राइट, दिस इज अ कूलर प्रोफाइल कंपैरेटिवली। फिर थोड़ा कंपनी टू कंपनी भी वेरी करता है, और राइट। जैसे अगर सिर्फ इंडस्ट्री में बात करें तो ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है क्या कंपैरेटिवली, लाइक फर्म के कंपैरिजन में, या दूसरे देखो, किसी अगर IB और मैनेजमेंट कंसल्टिंग छोड़ दिया जाए तो आप हाँ 8 to 10% की ग्रोथ ले लो हर साल की। ओके मतलब ये शुरू में हो सकता है ये 15% हो, फिर 12% हो, लेकिन 2-3 साल बाद इट विल बिकम 8 to 10%, एक एवरेज बन जाता है। अनलेस यू स्विच, जब स्विच करते हैं तो नेचुरली ज्यादा ग्रोथ मिलती है, 40% 50% सॉर्ट ऑफ ग्रोथ मिलती है, ओके, राइट। थैंक यू। के वेलकम। फर्म्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक पॉइंट बस ये है कि जो लोग बोल रहे हैं कि अब हमको फर्म्स ज्वाइन नहीं करनी है, उन लोगों के लिए बस मेरा एक ही सजेशन है कि अगर आपको लग रहा है कि यू वांट योर आर्टिकल्स ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट दैट ग्रेट, you have many attempts, you are not very clear, तो ये एक सेफ ऑप्शन।
यहाँ से आपके काफी सारे रास्ते खुल जाते हैं। जब आपके ऊपर एक बिग फोर का टैग लग जाता है तो आपके रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं, ठीक है। तो उस एंगल से आप इस बात को ध्यान रख सकते हो। मेनी पीपल डज दैट, दे यूज इट एज अ प्लेटफॉर्म। कई लोग ऐसा ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमें पार्टनर बन के ही निकलना है, वो इसको प्लेटफॉर्म बनाते हैं, 1-2 साल काम करते हैं, फिर उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, क्योंकि नेचुरली यहाँ पे आप सीखते बहुत कुछ हो, और उसके बाद फिर वो अपना करियर उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ऑडिट ऑडिट में आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स देखने को मिलेंगी, स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक, जीआरसी, एसडीसी, जीडीसी, सिस्टम एंड ईआरपी ऑडिट। देखो इसमें मैं केवल 2 रोल के बारे में बात करूंगा, और एक क्विक थॉट आपको ये मेरी तरफ से रहेगा, और ये क्विक इसलिए रहेगा क्योंकि मैं इसके रीजंस में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। इसमें बस मैं एक पॉइंट आपको ये बोलूंगा कि इसमें जो बेस्ट प्रोफाइल है दैट इज इंडियन स्टैट्यूटरी ऑडिट एज पर मी। इंटरनल, स्टैट, जीआरसी, पीडब्ल्यू सॉरी एसडीसी, इन सब में अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इंडियन स्टैट ऑडिट। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो, सपोर्ट फंक्शन नहीं है, तो आपका एक्सपोजर जो रहेगा वो एक्सपोजर बहुत नेक्स्ट लेवल का रहेगा, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप इंटरनल ऑडिट में जाते हो तो जरूरी नहीं है कि आप फाइनेंस रिलेटेड चीजें सीखोगे, हो सकता है वो नॉन फाइनेंस रिलेटेड चीजें सिखाएं आपको। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के इंटरनल ऑडिट में जाओगे तो वो आपको टेक्निकल चीजें सिखाएंगे, टावर्स कैसे फंक्शन करते हैं, या फिर सिग्नल्स कैसे वर्कआउट करते हैं। स्टेट ऑडिट इज कोर फाइनेंस, राइट। इफ यू वांट टू बी इनटू कोर फाइनेंस, बैलेंस शीट और P&L देखे बगैर आपको नींद नहीं आती अगर, राइट, तो आपके लिए स्टेट ऑडिट बेटर है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अभी धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे कि हमें एक ऐसा रोल मिल रहा है जो कि थोड़ा अलग है, शुड वी ज्वाइन इट और नॉट, ठीक है। तो अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड कोर फाइनेंस में रहना है तो बेटर है ये कि आप स्टेट ऑडिट इज दी सेफेस्ट ऑप्शन। यहाँ से आप इंडस्ट्री में भी स्विच कर सकते हैं। कई बार बिग फोर आती है, पार्टिसिपेट करती है, लाइक बिग फोर इज हायरिंग, एक हाइप बनता है मार्केट में कि बिग फोर इज हायरिंग, आप लोग अप्लाई कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हायर कर रही है। नो, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट, या सिस्टम ऑडिट इज कंप्लीटली डिफरेंट, उसका स्टेट ऑडिट से कोई कनेक्शन नहीं। आएंगी ये कंपनी, ये सब प्रोफाइल्स आएंगी आपके कैंपस के अंदर, तो वी नीड टू टेक अ कैलकुलेटेड कॉल ऑन दैट, ठीक है। सो आई विल टेक द क्वेश्चंस, राइट। मैं क्वेश्चंस एक साथ लेता हूँ इस पूरे सेक्शन के, आप लोग याद रखिएगा अपने क्वेश्चंस बस। थर्ड इज बैंक्स, ठीक है। तो बैंक्स के अंदर क्रेडिट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच मैनेजर 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। क्रेडिट और रिलेशनशिप मैनेजर, आपको याद है मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि 5800 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन लिया केवल 4200 ने ऑप्ट किया था। तो आपने दिमाग में आया होगा ना क्वेश्चन कि वो 1600 लोग कहाँ गए। 5800 का अगर सिलेक्शन हुआ तो सबने क्यों नहीं ऑप्ट किया, 4200 ने क्यों ऑप्ट किया? तो उसमें उसका एक बड़ा रीजन था रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है सेल्समैन का एक सोफिस्टिकेटेड नाम, सेल्स पर्सन, राइट। इसको उन्होंने थोड़ा सा ब्रांडेड नाम दे दिया है, दैट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें बेसिकली सेल्स है, ठीक है। नो, इज इट गुड और बैड? डेफिनेटली इसको हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, हर प्रोफाइल अपने आप में अच्छी होती है, बट ये बिजनेस डेवलपमेंट का रोल है। तो कई सीएस को ये रोल इतना एक्साइट नहीं करता है कि हम लोग सेल्स में नहीं जा सकते, तो इसलिए वो बेसिकली क्रेडिट में ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैक्सिमम ओपनिंग्स जो आप देखोगे बैंक्स के अंदर जो आ रही है, वो जैसे लास्ट टाइम लास्ट अटेंड आई रिमेंबर आईसीआईसीआई हैज 1500 ओपनिंग्स, 1500 ओपनिंग्स थी उनके पास। So 1500 ओपनिंग्स में से आप मान लो कि करीब करीब 1200 ओपनिंग्स वर इनटू रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ओनली 300 वर इन क्रेडिट, ठीक है। तो ये एक पर्सनल चॉइस है, और ये मैं थोड़ा आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपका क्या डिसीजन है सेल्स वर्सेस क्रेडिट के लिए। दोनों के सर अपने इनमें फायदे। दोनों में पैकेज कितना डिफरेंस होता है पैकेज का? पैकेज सिमिलर रहता है, दोनों का पैकेज सिमिलर होता है, स्टार्टिंग पैकेज, लेकिन धीरे धीरे फिर चीजें चेंज होती जाती है। देखो देखो में आपको प्योरली सेल्स करना है, और क्रेडिट में आपको असेसमेंट करना है। यू नीड टू डू द बैलेंस शीट एनालिसिस। ये थोड़ा जो पढ़ाई आपने करी उससे रिलेटेड वर्क रहता है, ठीक है।
तो सजेशन मेरा ये कि अगर आप प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते हो, आपके पीपल स्किल्स ऐसे नहीं है कि आप लोगों को कन्विंस कर सको और सेल्स का प्रेशर ले सको, तो फिर क्रेडिट में जाओ, दैट इज अ सेफर ऑप्शन। लेकिन अगर आप में ये सब बातें हैं, राइट, तो आप रिलेशनशिप में जा सकते हो और यहाँ पर ग्रोथ फास्ट है रिलेशनशिप में, क्योंकि जो कंपनी के लिए ब्रेड एंड बटर लेके आता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो रिलेशनशिप मैनेजर क्या कर रहा है, वो कंपनी के लिए पैसा लेके आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में इनकी वैल्यू जनरली ज्यादा होती है। जितने भी कंट्री हेड्स सुनोगे आप, बिजनेस हेड सुनोगे, राइट, रीजनल हेड सुनोगे, ये सारे रिलेशनशिप मैनेजर्स ही होते हैं, यहीं से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट बैंकिंग। आईटी कंपनीज भी हायर करती हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट। मूवीज देखी होगी आपने, राइट, रोबोटिक मूवीज, आधे रोबोट आधे इंसान, देखिए आपने, हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट, राइट, ऐसा कुछ बन जाते हो आप जब आईटी कंपनी ज्वाइन करते हो। आधा आपको टेक्निकल सिखा देते हैं, आधा फाइनेंस के आप बन जाते हो, तो इसको बोलते हैं टेक्नो फाइनेंस रोल, ठीक है। तो इसमें भी आपको जब टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है तो कई स्टूडेंट्स उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि कोडिंग वोडिंग हम क्यों सीखें, इससे हमारा क्या कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन कई लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इसमें ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन वाली बात नहीं है। जैसे जैसे रोल्स आपके सामने आएंगे, राइट, वी विल डू वन टू वन डिस्कशन, दैट्स द होल पॉइंट। यहाँ पे एक जनरलाइज आंसर देना इज वेरी डिफिकल्ट। मैं बोलता हूँ कि आप इन्फोसिस ज्वाइन कर लो, कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, सर मैं इन्फोसिस ज्वाइन कर लूँ क्या? वो ये भी नहीं बताते रोल क्या है, दूसरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, कौन सी लोकेशन है, इन्फोसिस में भी रोल कौन सा है, तो अगर टेक्निकल रोल है तो टेक्निकल में भी काम क्या है। सो ये बोलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि शुड आई ज्वाइन इन्फोसिस, यस और नो, ऐसे बता नहीं सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा एक थॉटफुल डिसीजन है, लेकिन ये कंपनीज और इस टाइप के रोल्स जनरली आते हैं। अब इसको अगर, हाँ बोलिए। What is the growth in analyst scope देखो, of growth? अगर फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करोगे तो सेम है, 8 to 10% जो मैंने आपको बताया, राइट, दैट इज द ग्रोथ, 8 to 10%। और अगर हम नॉलेज वाइज ग्रोथ की बात करें तो नेचुरली देखो, अगर आप एनालिस्ट रहते हो, बिजनेस एनालिस्ट, तो उसमें लर्निंग है, ऐसा नहीं कि लाइक यू डोंट लर्न एनीथिंग, देयर इज डेफिनेटली लर्निंग ऑफ दैट एज वेल। Okay, so at first, if we accept a job as a business analyst, can we switch roles and it would be easier for us to switch roles? नहीं नहीं नहीं, इजी नहीं है। अगेन वही पॉइंट है यहाँ पे भी, मतलब 6 months 8 months के बाद स्विच करना मुश्किल हो जाता है, मतलब 1 year के बाद डिफिकल्ट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में ही आप अपने रोल स्विच करो, ज्यादा बेटर है। और मेरा अगेन ये थॉट है कि हमको रोल स्विच करने की जरूरत लगनी ही नहीं चाहिए। हमारा फर्स्ट डिसीजन बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए। मतलब अब तो वो वाली बात नहीं है ना कि जैसे हम लोगों के टाइम पे कुछ भी एक्सेस नहीं थी किसी की भी, अभी तो लाइक यू हैव एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, सो यू कैन स्पीक विद पीपल अराउंड। और आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो, लिंक्डइन पे सर्च करो, वो लोग ऑलरेडी जो उसमें काम कर रहे हैं उनसे बात करो और आप एक डिसीजन ले सकते हो, राइट। तो दैट इज द इजीएस्ट वन। ऑफ कोर्स आई एम देयर, राइट, मैं अपना डायरेक्ट नंबर भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या व्हाटएवर, सो यस यू कैन डायरेक्टली स्पीक विद Thank you, sir. मी, राइट। सो दिस इज अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज। किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी को सिक्योर करने के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी और स्किल्स, राइट। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको नेचुरली अवेलेबल तभी होंगी जिस क्राइटेरिया पे हमने बात करी है, बैंक्स, फर्म्स और इंडस्ट्री इजीली अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग डिफिकल्ट, यू नीड टू गो टू इट थ्रू अ कनेक्ट वाला रूट। स्किल्स के ऊपर अब बात कर लेते हैं, क्योंकि स्किल्स ही अल्टीमेटली आपको इंटरव्यूज क्लियर करवाएंगे, राइट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो बेसिकली कैंपस क्वेश्चंस है, ठीक है। सो विल स्पेंड ऑलमोस्ट 15 minutes ऑन द कैंपस क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग जो भी उसमें आंसर्स करेंगे, राइट, यू विल गेट द प्राइजेस, राइट। हम लोग की टीम आपको प्राइजेस भेजेगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश प्राइज प्लस वी विल गेट डिस्काउंट ऑन आवर कोर्सेज। सो इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाएंगी कि लाइक कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को कंटिन्यूअसली करते जाना है, ठीक है।
ओके हाँ, एक जो टॉपिक था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट? ये वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट रियली मैटर और नॉट इन शॉर्टलिस्टिंग? सो अभी तक के डिस्कशन से ये बात तो क्लियर हो गई कि द आंसर इज क्लियर यस। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको। फिलोसॉफिकली लोग बहुत आंसर करेंगे आपको कि कोई अटेम्प्ट मैटर नहीं करते लाइफ में, राइट? सीए बन गए हो मतलब बस अब कोई चीज मैटर नहीं करती है, तो वो फिलोसॉफिकल आंसर है। रियलिटी ये है कि पहले जॉब में डेफिनेटली ये मैटर करते हैं, आगे वाले जॉब में डेफिनेटली मैटर नहीं करेंगे आपको, फिर आपका परफॉर्मेंस मैटर करेगा। लेकिन पहले जॉब में तो शॉर्टलिस्टिंग में मैटर कर रहे हैं, दिख रहा है हमको सामने ही ये चीज। इन्फोसिस क्लियरली, सॉरी विप्रो क्लियरली लिख रही है कि मुझे 3 अटेम्प्ट चाहिए सीए पाने, तो इस बात को हम डिनाई कैसे कर सकते हैं? आईटीसी क्लियरली लिख रही है, वेदांता क्लियर लिख रही है, जो चीजें सामने है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यस इट डेफिनेटली मैटर्स। अब ये कुछ कंपनीज हैं, हो सकता है इनके नाम आपको एकदम क्लियर नहीं दिख रहे हो, लेकिन ये एक बोलना चाहिए कि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन यही जनरली ट्रेंड रहता है। जिसकी रैंक रहती है उनको आप देखोगे कि मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग आ रही है, प्रीमियर डे की कंपनी से भी शॉर्टलिस्टिंग आ रही है, 20 शॉर्टलिस्टिंग आती है, 20 शॉर्टलिस्टिंग, 25 शॉर्टलिस्टिंग, मतलब जितनी कंपनीज पार्टिसिपेट करती है मैक्सिमम उनको सिलेक्ट कर लेती है। दूसरी, फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ी सी कम हो जाती है कंपनीज, राइट? तो विजुअली आपको क्लियर हो रहा हो, अगर आप कंपनीज के नाम नहीं भी दिख रहे हो तब भी विजुअली क्लियर होता जाएगा कि ऊपर जो ग्रीन जो ब्लू लाइन है, नेवी ब्लू, वो अटेम्प्ट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे कंपनीज की जो शॉर्टलिस्टिंग वो कम होती जाएगी, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते हैं। अब दूसरा सवाल ये कि कई लोग घबरा जाते हैं सुन के कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर कर रहे हैं, मेरे तो बहुत अटेम्प्ट है, शुड आई अप्लाई इट और नॉट? तो मैं पहले ही स्लाइड से आपको ये चीज बता रहा हूँ कि 100% आपको सिलेक्शन होगा, जॉब आपको 100% मिलेगी, आप 0.3% पॉपुलेशन में इंडिया की। आप इस बात को कभी टेंशन मत लेना कि मुझे जॉब को लेकर कोई कंसर्न तो नहीं होगा, कोई कंसर्न नहीं है, यू विल गेट द जॉब। ठीक है, नाउ इतनी शॉर्टलिस्टिंग में हमारी अगर शॉर्टलिस्टिंग कम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आ जरूर नहीं। पिछली बार मैंने आपको बताया था जो स्टूडेंट हमारे पास थे उनके 18 अटेम्प्ट्स थे, उनकी भी शॉर्टलिस्टिंग आई थी। तो ये डाउट आपको नहीं रखना है कि शॉर्टलिस्टिंग आएगी कि नहीं, शॉर्टलिस्टिंग आएगी। अब किन कंपनीज की आएंगी वो हमको थोड़ा समझना रहेगा। इन कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो जिन कंपनीज की, हेलो हाँ बोलिए। सर सिर्फ फाइनल के टाइम मैटर करेंगे या लाइक इट टुक मी 8 to 9 years टू कंप्लीट माय सीए? ओके, सो गैप काफी ज्यादा है एंड ड्यूरिंग माय फाइनल अटेम्प्ट्स आई डिडंट गेट अ जॉब ड्यूरिंग माय फाइनल। ओके, सो इसका कुछ मैटर करेगा क्या? लाइक आईपीसीसी के मेरे अटेम्प्ट्स लगे थे कुछ, आईपीसीसी के अटेम्प्ट ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, नहीं करेंगे? very दे विल very few companies, very few companies that in which that matters. So basically final का term matter करते हैं, लेकिन ये एक मेरा अगेन आप लोगों को थॉट है, मतलब एक सजेशन है कि इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अटेम्प्ट मैटर करते हैं। हम लोगों के जो सेशंस की प्लानिंग रहती है वो सेशन की प्लानिंग अटेम्प्ट वाइज रहती है, और वो बहुत जरूरी है, राइट? हम लोग जो बातें रैंक होल्डर्स के साथ अगर बोलेंगे कि हम लोग उनको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को फोकस करो, और वही अगर मैं किसी ऐसे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जितने ज्यादा अटेम्प्ट है, तो इनजस्टिस है, क्योंकि उनके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए मुझे उनको उस तरह से तैयार करवाना है। ओके, बट सर कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जो फाइनल के 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद किसी भी फर्म में जॉब स्टार्ट कर देते हैं, हाँ, उनके कंपैरिजन में जब हम जाएंगे जिनने बीच में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया है, बेसिकली आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद एक ब्रेक ही लग गया है, तो देखो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को आपको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आपके आर्टिकलशिप हुए को 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, कितना भी टाइम हो गया हो, वो तो आपसे यही सवाल पूछेंगे कि व्हाट हैव यू डन इन योर आर्टिकलशिप। उसके ऊपर सवाल आएंगे आपको, और वो आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। And sir, if we have done any freelance work in between, can we, I mean, there is no record for freelance work, so can we just tell them if they ask if they, do you have any practical experience apart from articleship? Yes, definitely.
कंपनसेट करने के लिए आप बोल सकते हो, लेकिन उसमें ऐसा है कि आपके पास उसका कहीं ना कहीं एक लेटर होना चाहिए, लाइक यू वर्क विद देम, ओके मतलब कुछ प्रूफ हो, क्योंकि जो फॉर्म भी आप फिल करोगे ना उसमें वो डिमांड करेंगे उस चीज का, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। ओके तो अभी ये जो डिस्कशन है मेरा, वो ये डिस्कशन इस चीज के ऊपर है कि अटेम्प्ट मैटर करते हैं, ठीक है। अभी किसी आप में से किसी ने बोला था कि हमारे पास अगर दूसरी क्वालिफिकेशन है तो वो क्या उसको ओवरराइड कर सकते हैं, तो उसका इस कंटेक्स्ट में आंसर है नो, इट विल नॉट ओवरराइड। मतलब कि वो अटेम्प्ट्स को ही देखेंगे, बाकी क्वालिफिकेशन को वो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो जो लार्ज कंपनीज है, प्रीमियर डे की कंपनीज है, आईबी टाइप की कंपनीज है, लेकिन कुछ और कंपनीज हैं वो शायद कंसिडर कर ले, ठीक है। तो ये काफी कुछ डिपेंड करता है, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड बोलता है, वो ट्रेंड, एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शंस की बात अलग है, लेकिन जो ट्रेंड बोलता है वो ट्रेंड यही बोलता है कि अटेम्प्ट्स और मार्क्स, अगर आपके 55% से ज्यादा नंबर है तो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एडवांटेज मिलता है। लेकिन जो प्राइमरी बात होती है वो होती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। मतलब ये हम लोग बहुत क्लियरली देखते हैं कि इस तरह का ट्रेंड चलता है, इसमें अटेम्प्ट्स डेफिनेटली मैटर्स होता है। तो आप लोगों के लिए जो इमीडिएट एक्सरसाइज है, वो इमीडिएट एक्सरसाइज ये है कि हमारे अटेम्प्ट के हिसाब से व्हाट इज द राइट कंपनीज, विच आर द कंपनीज विच आर सिलेक्टिंग। उसका आंसर भी मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि उसका आंसर बेसिकली ये है कि जिनके अटेम्प्ट्स जनरली ज्यादा हैं, ठीक है, उन लोगों को डेफिनेटली इंडेस के ऊपर तैयारी करनी है, क्योंकि फॉर्म्स और कॉर्पोरेट्स, राइट, वहां पे शॉर्टलिस्टिंग आ सकती है। क्रेडिट मैनेजमेंट की जो प्रोफाइल्स है उसके लिए आ सकती है, ठीक है। सर तैयारी आपको सब जैसे कुछ करना है। ओके ओके, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस वन, कि तैयारी आपको सब कुछ करना है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी नहीं करो, करना आपको एफएमबी है, लेकिन किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता चला जाए। क्लियर है आप लोगों को बात? तैयारी आपको सारी करनी है, लेकिन किसको कितना हमको इंपॉर्टेंस देना है, दैट विल चेंज। हाँ बोलिए किरांजलि। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि मतलब हम यदि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है, सपोज जैसे मेरे 6 अटेम्प्ट्स हैं, तो आपने बोला कि ये तो डायरेक्ट रिजेक्शन हो जाएगा, बट जैसे 55% से यदि अबव मार्क्स है, तो हाँ। जैसे मेरे 448 मार्क्स हैं, दैट इज अबव 55%, तो हम्म, क्या ये थोड़ा काउंटर करेगा उस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाली चीज को? थोड़ा थोड़ा करेगा, लेकिन अब वो ओके कितना करेगा वो बताना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मतलब दी कंपनीज चेंजेस एवरी ईयर। हर बार आप देखोगे कि एक नई सेट ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेट करती है विद न्यू सेट ऑफ क्राइटेरियाज। लेकिन जो भी हम बातें कर रहे हो ये बोल सकते हो आप 80% केसेस में सही चलती है, 80% केसेस में जो हम बातें कर रहे हैं वो सही रहती है। जो 20% में आपको बोल रहा हूँ, इनफैक्ट नॉट 20%, 10% केसेस में एक्सेप्शनल केसेस निकल कर आते हैं, लेकिन वो ओके केवल 10% केसेस होते हैं जिसमें लाइक व्हाट वी थिंक समथिंग एल्स हैपेंस। जैसे कि अगर मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि आप ये सेंटर लो, और उस सेंटर में की जगह कोई और सेंटर पे ज्यादा कंपनीज आ गई, तो ऐसा करीब 10% केसेस में हो सकता है। 90% केसेस में जो पास्ट ट्रेंड है वो रिपीट होता है। तो in this ओके your specific case also, I would say 90% chances are almost similar like that, because we have seen people who have got some kind of experience, who have done MBA also, who have done CS also. तो लेकिन जो शॉर्ट लिस्टिंग आई वो लगभग लगभग वैसी ही आई जैसे पहले आ रही ओके सर। आई डू हैव अ क्वेश्चन सर। तो आप कह रहे हैं कि इंडेक्स में प्रिपरेशन करने के लिए, बट फॉर द स्टूडेंट्स लाइक अस हु हैव कम फ्रॉम ओल्ड सिलेबस, उनके लिए तो इट विल बी मतलब अपहिल थी। देखो कोई टास्क। डिफिकल्टी नहीं है, राइट, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर दूंगा उसके लिए। वी डू 6 days सेशन ऑन इंडेक्स, राइट। और इस बात की हम लोग की गारंटी रहती है कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड है, जिन लोगों को लगता है कि हम 100% प्रिपेयर्ड है, वो, और वो स्टूडेंट जिनको लग रहा है हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं, दोनों ही उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते जो क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करते हैं। दैट इज द सरप्राइजिंग फैक्ट। आज मैं 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे,
आप देखोगे कि जो 100% प्रिपेयर्ड है, राइट, जिन्होंने अभी दिया है वो भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं, और जो जिनको बहुत टाइम हो गया वो भी आंसर नहीं कर पा रहे। उसका रीजन ये है क्योंकि आप लोगों ने थियोरेटिकल पढ़ा है, आपसे कंपनीज प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रखती है कि आप उसको अप्लाई करोगे, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि अभी तक आप फ्रेशर हो, आपका इतना काम नहीं पड़ा है, अनलेस कि आपकी आर्टिकलशिप में आपने बहुत डीप वर्क किया हो इंडेक्स पे, तो बात अलग है। तो इसलिए उस चीज को इतना हैवी मत लेके चलो। इन 6-7 days you will be 100% ready for the entire this thing, Sir, right? Thank you, sir. सर अपार्ट फ्रॉम इंडेस हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है Right. या अकॉर्डिंग टू जॉब रोल वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट? Right. Now I'll come on to that part. That is the final part. That what I will have you have to prepare, right? So, एक ये स्लाइड है, इसका भी आप एक स्नैपशॉट ले लो। एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑल्दो ये थोड़ा अर्ली डिसीजन है, लेकिन किसी कंपनी के बारे में जब आप सिलेक्शन के बारे में सोचोगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि किन क्राइटेरियाज को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। Little bit I'll talk about the camp prep, and then we'll come on to the campus part. We are having a super 60 batch because what we believe is that limited batch size is required so that we can interact, right? If it is like too many students, the student do not get the opportunity to speak, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग batch size इसलिए 60 ज्यादा नहीं रखेंगे। This is always in a small batch that the hesitation and fear of public speaking can be removed, right? अगर आपको आपकी पब्लिक स्पीकिंग की का फियर हटाना है तो थोड़ा कम क्राउड में ही आप उस चीज को कर पाते हो। एंड वी ऑलवेज कीप इट लाइक दैट। ये जो अभी इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, थोड़ा आप इंटरेक्शन उसी टाइप से रियल क्लास में भी देखोगे। I'll be taking almost all the sessions except taxation, right? Taxation के sessions कोई और लेंगे industry experts, बाकी सारे ही sessions including India's audits, financial management, all the sessions, group discussions, everything I'll be taking in the classes, right? So there are no surprises, you know, कि आपको पता नहीं है like who's teaching. This is all about speaking, right? You will get the chance to speak. Just don't have to watch only. You will have to speak, right? That is the most important thing. Yes, career related जो भी आपको guidance चाहिए, yes, I am always available, one call away for all kind of this thing. We will have a special emphasis on technical interviews. As I told you, we will have 6 sessions on India's, right? Hardcore practical questions which are already discussed, already asked in the campus, right? वो questions हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रह जाए। इस मैक्सिमम फोकस उनका कौन से इंडेक्स पर रहता है, मैक्सिमम क्या वो क्वेश्चंस पूछते हैं। सिमिलरली ऑडिट ऑल्सो, अगर आपने कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं किया, कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम लोगों ने टैक्स ऑडिट ही करेंगे, कंपनीज के ऑडिट करें ही नहीं है, तो फिर आपको पता नहीं होगा कि ऑडिट किस टाइप से होता है। तो इसलिए हम 3 सेशंस ऑडिट पे करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 4 सेशंस होते हैं जिसमें आप बैंकिंग के सारे रोल्स के लिए रेडी हो जाते हो, और अगर किसी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए भी कॉल आता है, राइट, दे विल बी रेडी दीज 4 सेशंस, यस। लेकिन किसी को अगर आईबी का कॉल आता है तो उनको हम थोड़ा अलग से टाइम भी देते हैं। टैक्सेशन के लिए there will be 2 sessions, but again, like those who got call from taxation, they will get separate time from our expert faculty. Right, this is what we have been doing 2017 onwards. The days will be 21 days. That is 15 plus 6. 15 days would be core preparation, right? ये जो मैंने आपको बताया, days and all this kind of stuff, resume building and everything. This will be in 6 days will be revision and mock up. क्योंकि देखो आपका कैंपस होगा 18 अगस्त से स्टार्ट, क्लासेस हमारी हो जाएंगी स्टार्ट 11 से, राइट? सो ये क्लासेस आपकी जुलाई एंड तक खत्म हो जाएंगी। फिर आप बोलोगे कि लाइक अभी तो हमारा गैप है काफी, तो ये गैप नहीं आना चाहिए, राइट, प्रिपरेशन और कैंपस के अंदर। तो लास्ट जो मूवमेंट होता है, राइट, अराउंड वीक बिफोर वी डू ऑल काइंड ऑफ रिविजन्स, राइट, ताकि आपको एंड मोमेंट तक उसका एक कंफर्ट बना रहे। अभी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, फिर एक बहुत लंबा गैप आ जाएगा, इसलिए उस गैप को क्रिएट नहीं होने देना है हमें। Last 6 days would be for that. So 15 days, 15 sometimes goes to 17 also. But broadly, लेकिन अगर किसी का कोई जल्दी कॉल आता है, राइट, अगर आपका सपोज को इंटरव्यू जल्दी लाइनअप हो रहा है, तो आप लोगों को उसके लिए थोड़ा सा एडवांस बताना पड़ेगा। वैसे इतना जल्दी लाइनअप होते नहीं है, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें 1 वीक 10 दिन में कुछ लाइनअप होता है। बट अगर कोई लाइनअप होता है तो यस, डू टेल अस इन एडवांस, विल सेट स्पेशल सेशंस फॉर यू।
All the mock interviews, yes, I'll do the mock interviews also, right? I do not outsource it to someone else, right? हम लोग mock interviews खुद करते हैं because the kind of experience that is required, right? One has to have an understanding of everything. So Ind AS also, audit also, tax also, HR related questions also. So sometimes it become difficult क्योंकि किसी को भी हम अगर outsource करते हैं तो उनको एक ही field का generally idea होता है. तो that's why we do mock interviews ourselves. इवनिंग टाइमिंग्स रहेंगी आपकी लाइव बैच के लिए जो ऑनलाइन रहने वाली है 7 PM to 9 PM, राइट? शाम को 7 बजे से 9 बजे तक. और मॉर्निंग में अगर आप फेस टू फेस करना चाहते हो तो इंदौर में इट विल बी फेस टू फेस फ्रॉम 8:30 to 10:30, राइट? सो दिस विल बी 2 hours एवरी डे. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पे वी डू सेपरेट सेशंस, राइट? जिनके जितने अटेम्प्ट्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली वी डू सेपरेट सेशंस, क्योंकि as I already told you, this is definitely very important thing. We cannot teach everything similar, right? हर चीज एक जैसी हर एक के लिए important नहीं है. किसी लिए कोई particular topic ज्यादा important है, किसी के लिए कम है. तो इसलिए एक number of attempts के basis पे divide करना जरूरी है. So we'll start from day after tomorrow, right? 11th of July, not 11th of August, right? We'll start from day after tomorrow. These sessions. राइट? इसके जो डिटेल्स हैं वो सारे आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, राइट? आई विल सेंड यू द लिंक ऑन द ग्रुप्स दैट देयर विल बी 5 group discussions, 2 mock interviews, आर्टिकलशिप प्रेजेंटेशन. कई लोग बोलते हैं कि आर्टिकलशिप हमारी स्ट्रांग नहीं है, तो उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे, राइट? दैट इज अगेन like a 2 days of discussion, right? आर्टिकलशिप के ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है दैट tell me about your articleship experience. What contribution have you made to your firm, right? तो ये सब questions के आप आंसर कैसे करोगे? Again, like we need to discuss it one on one. Resume building, resume in fact I'll send you right away. आपको कुछ formats share कर दूंगा, आप लोग उसको देखिएगा और कोशिश करिए अपना resume सबसे पहले बना लीजिए. उसमें ज्यादा like I have also shared a video also on resume, how to prepare योर रेज्यूमे. उसको पूरा थॉरोली देखिए. 1 घंटे का हम लोग की प्रीवियस क्लास के साथ डिस्कशन है. उसमें मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं, ठीक है? तो 60 मिनट्स निकालिए और डू डेफिनेटली वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड आई विल सेंड यू द फॉर्मेट एवरीवन, तो उसको यूज करिएगा. प्लेसमेंट असिस्टेंस, yes, definitely we have a very large community. More than 2000 students are working all across. My friends, they are working in various industries, right? Many are working now as a CFO. So we have a very strong placement assistance as well. And wherever I believe कि वैसे तो कैंपस में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी कई बार अगर इन केस कोई कैंपस इतना अगर अच्छा नहीं आता है, राइट? तो आपको उस चीज के लिए चिंता नहीं करनी है. Yes, we have a very strong placement team. They will help you out with that. All the sessions will be recorded also. So आप अगर कोई session miss out करते हो, so you will get the recording for that as well. ठीक है? So all the companies, right? You name it, and our past students are working in that particular company. Yes. So this is what we are doing, and fortunately, yes, we are still maintaining that quality. I still get that kind of feedback that yes, we are not compromising on the quality. We are spending give time to students. Students always tell me that the best part is that I'm available on a call, right? So वो चीज आपके पास हमेशा available रहेगी, ठीक है? So this is about what we do right now. I'll quickly move on to the campus part, ठीक है? Sir, I do have a question on resume part. So हाँ, like if we are applying for internal audit and for statutory audit, so do we have to prepare a different resume for both of them, or a single resume will work? Like I don't have an articleship experience in state audit, like very vast. Okay. It's just 1 or 2 clients. So देखो मेरे हिसाब से स्टैट्यूटरी ऑडिट का एक्सपीरियंस हर एक के लिए लिखना जरूरी है. हर एक के लिए लिखना जरूरी है, राइट? मतलब अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो उसको लिखो आप, बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें मैक्सिमम कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेगी. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट. तो अगर ये दोनों आपने नहीं लिखा, सीधा टैक्सेशन लिखा अगर, तो कहीं ना कहीं ये इशू बन सकता है, ठीक है?
आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में। तो बेटर है कि अगर थोड़ा भी काम किया है आपने, स्टॉक ऑडिट भी किया है सपोज सिंपल सा और कुछ नहीं किया, उसको भी लिख लो, ऑलवेज विल बी हेल्पफुल। ठीक Okay, है, sir. Thank you. और मुझे भेज दो, लाइक अभी लाइक इनिशियली फर्स्ट फ्यू रिज्यूम विल बी वेरीफाइंग इट, राइट? So once I'll send the format, our team will tell you, like you can send it to us for review as well. So resume को लेकर definitely हम लोग एक आपको कुछ वीडियो, कुछ फॉर्मेट्स और उसको किस तरह से रिव्यू करना है, राइट? बिकॉज आई विल पर्सनली रिव्यू दोस रेज्यूमे। तो कुछ फर्स्ट 50 रेज्यूमे डेफिनेटली वी विल बी रिव्यूइंग इट इन नेक्स्ट 2-3 days। तो आप लोग के जितने जल्दी जल्दी रेज्यूमे होते हैं आप लोग हमें भेजिएगा, ठीक है? विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स कि आपको कहाँ भेजना है, व्हाट्सएप करना है या फ्री मेल करना है। राइट नाउ विल कम ऑन टू द कैंपस प्रिपरेशन पार्ट। कैंपस प्रिपरेशन को लेकर कुछ डिस्कशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि सीए फाइनल और कैंपस प्रिपरेशन, उसमें एक बड़ा डिफरेंस जो है वो है थियरी और प्रैक्टिकल का। बहुत सारी चीजें अभी आपने थियोरेटिकली देखी है, अब आपको उसको प्रैक्टिकली देखना है, ठीक है? तो मैं ज्यादा टाइम बैकग्राउंड में नहीं लेता हूँ, मैं सीधे क्वेश्चंस पर आता हूँ, ठीक है? किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और राउंड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है? तो राउंड्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ एक सैंपल स्लाइड है। जैसे कि ईवाई में अगर आप देखते हो तो एक टाइम पर जीडी होता था, अभी बिग फोर ने जीडी करना बंद कर दिया है, सीधे इंटरव्यूज होते हैं यहाँ पे, राइट? विप्रो में अगर बात करें तो सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। तो जिन लोगों के 3 अटेम्प्ट है, अभी से मैं आपको बोलता हूँ, विप्रो की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले ऑफ कैंपस में विप्रो आ जाती है और उसका जो रिटन टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। क्यों टिपिकल होता है? क्योंकि वो मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछते हैं एंड नोबडी इज प्रिपेयर्ड। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ फ्रैंकली कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को लेके कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो अगर आपके 3 अटेम्प्ट, और कई बार वो 4 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को भी कंसिडर करते हैं, पिछली बार उन्होंने 4 अटेम्प्ट के स्टूडेंट को कंसिडर किया था। तो इफ यू हैव 4 अटेम्प्ट तक के अगर आपके फाइनल में अटेम्प्ट्स हैं तो विप्रो के रिटन टेस्ट के लिए तैयारी करो। एक वीडियो है हमारा विप्रो के रिटन टेस्ट के लिए, मैं उस को भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, उसको देखना स्टार्ट कर दो। ऑल्दो वी विल डू अ सेशन जैसे ही विप्रो के डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, बट अभी तक का ट्रेंड ये रहा है कि सबसे पहले ही आ जाती है, 15 से 20 दिन में आ जाएगी विप्रो। तो उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी, ठीक है? दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। तो एक वीडियो विल शेयर। तो विप्रो का रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद उसके 3 राउंड होते हैं इंटरव्यूज के। उसमें कुछ टेक्निकल होते हैं, कुछ एचआर होते हैं। जनरली 2 टेक्निकल होते हैं और 1 एचआर राउंड होता है। वेदांता अभी भी जीडी करवाते हैं, वो ऑनलाइन जीडी करवाते हैं, ठीक है? तो आपको एक प्रैक्टिस डेवलप करनी रहेगी जिसमें आप ऑनलाइन, लेकिन एक बार अगर आप जीडी के लिए तैयार हो जाते हो तो फिर वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जीडी की स्किल्स डेवलप करनी है। टेक्निकल इंटरव्यू यस वेदांता का होता है, फिर एचआर इंटरव्यू। एलएनटी के लिए भी रिटर्न टेस्ट होता है, फिर एचआर राउंड होता है, फिर टेक्निकल राउंड होता है। तो जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, उसको अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो कुछ कंपनीज जैसे कि एलएनटी और विप्रो, ये 2 अपने रिटर्न टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है। इसमें ये लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो खासतौर पे 2 कंपनी के लिए काम आएंगी आपको, रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है? उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस 10 में से 2 कंपनीज कराती है, तो बहुत ज्यादा इसके लिए लोड नहीं लेना है आपको। लेकिन फिर भी लाइक जिन लोगों को बैठना है, जैसे वेदांता में जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनको वेदांता में अगर शॉर्टलिस्टिंग आएगी तो तैयारी करना ही है, राइट? जीडी के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना हुआ। और पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे तो मैं सभी को बोलूंगा कि जीडी के लिए तैयार करो अपने आप को। ग्रुप डिस्कशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल वन हैज टू डेवलप। तो क्लास में हम लोग जीडी की क्लासेस करें तो ये मत सोचिएगा कि हमारा तो केवल इंटरव्यू होने वाला है, हम जीडी में क्यों करें। आपको कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी में हेल्प करेगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी उसमें, ठीक है? सो जीडी के लिए व्हाट यू नीड इज हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, राइट, ऑफ द करंट अफेयर्स। सो सबसे पहले आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। रेज्यूमे को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, जो मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा। रिटर्न टेस्ट होगा, हर कंपनी नहीं करती है लेकिन जो भी कंपनीज करती हैं, जीडीज, टेक्निकल इंटरव्यूज, पर्सनल इंटरव्यू और पार्टनर, राइट? पर्सनल इंटरव्यू मींस एचआर इंटरव्यू। सो रिटर्न, जीडी, टेक्निकल, पर्सनल इंटरव्यू, पार्टनर, इनके लिए अपने आप को तैयार करना, ठीक है? इसमें सबसे कॉमन क्या है? इंटरव्यूज, जो सभी का होने वाला है, ठीक है? रेज्यूम को लेकर बात हो गई। रिटर्न टेस्ट को लेकर नेचुरली कुछ क्वेश्चंस हैं
लेकिन अभी क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है इसलिए आप इनके स्नैपशॉट ले लो और फ्री टाइम में इसको सॉल्व करना, इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका जस्ट एक स्नैपशॉट ले लीजिए। जीडी को लेकर एक क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये केवल जीडी का क्वेश्चन नहीं है, कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बिना ज्यादा टाइम लिए कौन बता सकता है कि इंडिया की जीडीपी कितनी है? अनम्यूट करके आपको आंसर देना है, लिखना नहीं है, अनम्यूट करके आंसर देना है। हाउ मच इज एब्सोल्यूट जीडीपी ऑफ इंडिया? कोई भी गूगल और चैट जीपीटी यूज मत करिएगा। अराउंड 5%, 5 to 7%. एब्सोल्यूट जीडीपी, एब्सोल्यूट कितनी है? दिस इज ग्रोथ। इतनी देर में आप लोगों ने गूगल कर लिया, राइट? सो आई वांटेड अ क्विक आंसर। आपको इंटरव्यू में क्विक आंसर देना है। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर वी विल डिस्कस टेक्निकली, थोड़ा जनरल नॉलेज भी आपको पढ़ाना है क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया की जीडीपी कितनी है। इंडिया की जीडीपी है समवेयर 3.7 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो हम लोगों को एनहांस करना है। दैट इज जनरल नॉलेज, दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड इकोनॉमी। तो कुछ सेशंस हमारे जीडी में इस टाइप के होंगे जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस बढ़ेगा और ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करे। क्लियर है सभी को? ठीक है, अच्छा, हर क्वेश्चन की कुछ प्राइस है, राइट? प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे अब आपको, तो कोशिश करिए अगर आपको आता है आंसर तो अनम्यूट करके आंसर करिए। ठीक है, अब हम इंटरव्यूज पर आ जाते हैं। इंटरव्यूज में टेक्निक आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को लाइटली मत लीजिएगा। आपने जो भी आर्टिकलशिप में चीजें करी है उनको अभी से रिकॉल करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स शेयर करूंगा, उन फॉर्मेट्स में उसको पुट इन करना स्टार्ट कर दो। तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इंटरव्यू। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दिस स्क्रिप्ट आई विल बी शेयरिंग विथ यू, द मोस्ट एक्सेप्टेबल स्क्रिप्ट used by more than 2000 students in their 4000 interviews. ठीक है, सेकंड इज आर्टिकलशिप स्क्रिप्ट। आर्टिकलशिप को भी कैसे प्रेजेंट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड विल बी योर टेक्निकल क्वेश्चंस। ठीक है, कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से, डू यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन? The question is that if NPV is positive 1 crore and you have to invest in that project, will you invest in it or not? ठीक है, जिन लोगों ने ग्रुप में नहीं है उन लोगों को मैं वापस पूछ लेता हूँ, अगर एनपीवी पॉजिटिव है 1 करोड़ और आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? सर आईआरआर भी देखना होगा, नॉट ओनली सिर्फ एनपीवी। Okay, so basically the options were yes, no, and it depends. It So your depends. answer is Yes, it depends. depends, sir. NPV is only outflow and inflow, but IRR is internal rate of return. सर जो रिटर्न investment ऑन इन्वेस्टमेंट हमको क्या मिलेगा वो देखना पड़ेगा सर। All right. Also, we have to see the payback period, like how much time it will. that is IRR divided by the number of Payback period also. Okay. Yes. All right. So सर क्योंकि कोई क्वेश्चन बेटर कल मैं अपॉर्चुनिटी हो तो other opportunities also, right? So you people are all right, right? इसका आंसर is definitely it depends. ठीक है, इसका आंसर yes नहीं है, right? मेरे को ज्यादा आंसर yes के मिला है in my WhatsApp group also and on my LinkedIn poll also. ज्यादा आंसर yes मिले हैं, लेकिन इसका आंसर yes नहीं है। It depends, right? किस चीज पर डिपेंड करता है ये? If you are getting 1 crore as if you've done a 1 crore of outflow, right? And 2 crore of inflows is happening. How much is NPV? NPV is 1 crore, right? And if you've done 100 crore of outflow and you got 101 crore of inflows, still you have got 1 crore of NPV. Yes. In one case, you are getting 100% return. In another case, you are getting just 1% return, slightly higher than your cost of capital. So, एक बिजनेस केवल इसलिए बिजनेस नहीं करेगा ना कि उसकी कॉस्ट 8% है और रिटर्न 8.1% है, या 8% उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और 8.01 उसका रिटर्न। स्लाइटली हायर से बिजनेस के डिसीजंस नहीं होते हैं, इट हैज टू बी सब्सटेंशियली हायर। तो इसलिए यस, यू आर राइट, बेसिकली वन हैज टू कंसीडर आईआरआर आल्सो। या तो आईआरआर होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास कितना आउटफ्लो है, राइट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है वो होना चाहिए। So the information is insufficient in this case, and we can only tell if we get the complete information that how much is the initial outflows or how much is IRR. ठीक है,
So this is a real question that is asked in one of the interviews. Recognition of revenue for a software company. ठीक है, ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो मैं हर बार पूछता हूँ, और यहाँ पे मुझे लगता है कि लाइक स्टूडेंट्स हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, how will you recognize revenue in case of a telecom company? अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी हो और आप प्रीपेड कस्टमर्स और पोस्टपेड कस्टमर्स, इन दो तरह के कस्टमर्स में डील करते हो, तो एज पर इंड AS 115, ठीक है, आप कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? प्रीपेड के लिए कैसे करोगे और पोस्टपेड के लिए कैसे करोगे? ठीक है, that is the question. Okay, so I'll take quick 1 or 2 answers from whoever, but I want answers in the form of speaking, right? Not in the form of writing. राइटिंग वाला काम खत्म, राइट? ये याद रखिएगा, अब हो गया राइटिंग वाला, जितना काम था आप आगे निकल गए हो, अब सब स्पीकिंग है. तो मोर ऑफ स्पीकिंग, लेस ऑफ राइटिंग. So I don't have any recognition of Ind AS, but as per my knowledge, I can say that for postpaid customers, it is on basis of accrual basis because they are fixed, and for the prepaid customers, means as is when basis. As and when basis. All right, all right. Okay, good try. और बताइए, anyone else? How will you recognize revenue in case of prepaid and postpaid customers? Yes. Anyone? In case of prepaid, the charges we are charging the customer, that will be recognized on basis of when they are recharging, like when we are earning basically that amount of income. In case of prepaid, and postpaid, it's fixed, like said by a former person. It will be fixed basis. All right. Sir, in case of postpaid, when the performance obligation is fulfilled, so we will record the revenue. And in case of And prepaid? in case of prepaid, at the time of at the time of booking, when we are receiving the money. All right. Sir, I think for prepaid, you will record it over the period of time because you will be providing the services. And once the service gets over, I mean, over the period of time for prepaid, and for postpaid, you will record it once the payment has been received. तो आई थिंक कि कैश बेसिस होगा, क्योंकि आपको अगर पैसे रिटर्न नहीं करने तो आपका रेवेन्यू हो गया है. All right, cash basis होगा. In case of prepaid, when the plan is ultimately sold to the customer, then only the revenue will be recorded. तो प्रीपेड के केस में जैसे कैश रिसीव हुआ तो उसको अगर रिफंडेबल नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट असेट बना देंगे, और जैसे हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगा हम उसको रेवेन्यू ट्रीट कर लेंगे. All right, okay, good answers. देखो, इसका जो आंसर है बेसिकली, दैट आंसर इज दैट, मैं आपको मतलब जनरल एंट्री के फॉर्म में पूछ सकता हूँ ये क्वेश्चन, सबके अलग अलग आंसर्स आएंगे. इसका जो वन लाइन आंसर है, वन लाइन आंसर ये कि वेदर इट इज अ प्रीपेड और a postpaid, okay, it doesn't matter. In both the scenario, revenue will be recognized as per the 5-step model of Ind AS 115, which says that as and when the performance obligation gets satisfied, we will recognize the revenue. Even if it is prepaid. What is prepaid? Prepaid is when you are receiving the money in advance. And what is postpaid? It is kind of a credit customer. So do you do two different treatment for your cash sale and credit sale? The answer is no. You do same treatment for your sales, right? Whether the sale is on cash or is on a credit basis, right? Revenue recognition change नहीं होगा, right? Revenue will be recognized with the same similar format, ठीक है? तो आपको यही आंसर रखना है इस केस में, ठीक है? ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है क्वेश्चन, विप्रो में 2-3 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, विद अमाउंट्स एंड विद नंबर्स, दे विल आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है? सो व्हाई आई टोल्ड यू कि ये इंड AS, जब मैं आपको बता रहा हूँ इंड AS के लिए, सो ये बात याद रखनी है आपको, इंड AS 115 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेज. क्लास में हम 6 सेशंस में से करीब 2 सेशन पूरे इंड AS 115 पे ही स्पेंड करते हैं. ये एक ऐसा इंड AS है जिसको किसके 99% आई कैन वाउच कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने पर. क्लियर है आपको? सो इसको आप बहुत हाई प्रायोरिटी पे रखिएगा,
ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, जैसे कि एज पर इंडेस कैन लैंड बी रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट? लैंड को हम कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करते हैं या फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं इंडेस के हिसाब से? सर कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करते हैं या फेयर वैल्यू पे करेंगे? नहीं, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल इट विल बी वैल्यूड एट द करंट मार्केट प्राइस, बट इफ इट बी कैरिड ऑन इन द बुक्स देन कॉस्ट पे ही होगा सर। ऑलराइट, एक्चुअली सबसे पहले तो सर ये देखेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कि पीपीई में आ रही है। नहीं पीपी में, अगर दिस इज इन पीपी। पीपीई में है तो फिर दोनों मॉडल, कॉस्ट मॉडल और इवैल्यूएशन मॉडल, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ओके, बट दोनों में से डेप्रिसिएट कोई नहीं होगा लैंड, बट मॉडल तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्या पॉलिसी है कंपनी की। ऑलराइट, okay, so So this land is is valued at cost, but if it is PPE held for sale, then the cost or realizable value, whichever is lower, shall be recognized. no, not held for sale, this is basically for your use, regular use. तो अब क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऑलराइट, सो देखो इसका जो आंसर है बेसिकली धनश्री हैज गिवन द राइट आंसर। बेसिकली द इंडिया टॉक्स अबाउट फेयर वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट, हर चीज फेयर वैल्यू होगी, ठीक है? तो लैंड भी फेयर वैल्यू होगी, राइट? नाउ फेयर वैल्यू इज टू मॉडल, वन इज कॉस्ट मॉडल, वन इज रिवॉल्यूशन मॉडल। आप कौन सा मॉडल यूज करते हो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि इन इंडेस एवरीथिंग इज फेयर वैल्यू, ऑल पीपी इज फेयर वैल्यू एंड it has two models, one is cost and one is revolution, ठीक है? And that depends on the company's choice, right? So the correct answer is Dhanshri, right? So one definitely winner of right answer, ठीक है? और लेते हैं questions।